These things are not going to be repeated. Somehow मुझे अभी इन चीजों को डिस्कस करना और मुझे थोड़ी सी ओरिएंटेशन अपनी इस लिहाज से करनी है, ओके, वर्बल के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसको प्लीज थोड़ा सा देखें. GRE's verbal is a hard nut to crack even for the native speakers. Maths on the other end is really simple, very straightforward. जो GMAT की maths है, there's another test GMAT, उसकी जो maths है वो इनफैक्ट वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है एज कम्पेयर टू GRE की मैथ्स. GRE की मैथ्स सिंपल. GRE की मैथ्स, GRE मैथ्स, there is no such thing as maths. There is no such thing as GRE maths. In fact, if you have the official guides of this test, उसमें जो maths होते हैं, there is a certain specific name of that, जो इसको maths को कहते हैं. It is called quantitative reasoning. Quantitative reasoning, okay. So it is not the maths. It is इसको हम लोग quantitative reasoning कहते हैं. Reason क्या है? Just एक fancy सा नाम दे दिया. No, the reason is how this test operates. And again, the GRE English or English is verbal reasoning, okay. The maths is called quantitative reasoning, and the verbal is called English is called verbal reasoning. English is verbal reasoning and maths is quantitative reasoning. Again, ये इसका खास इस पीछे specific reason को understand करना has it, इसकी कोई ramifications है मेरी इस journey के लिए. Yes, इसको थोड़ा सा देखते हैं. English is not pure English. It is very logical English. The passages जो reading comprehension के जो passages भी हम लोग देखेंगे, it is not, the passages have certain characteristics. These are very logical passages as well. The passages are very logically coherent. No abrupt jump of ideas. अब इसमें as I mentioned कि half, अगर एक section में you have 20 questions English के, तो 10 questions are reading based and the other 10 questions are vocabulary based. In the reading based questions you have 8 to 9 questions which are reading comprehension, and 1 or 2 questions which are called critical reasoning or argument passages. वो हम लोग आगे जाके देखेंगे argument passages exactly क्या होते हैं. Argument passages में you guys can view the screen as well, right? Yes. अच्छा, argument passages में logic का वाला part is very pronounced. English वाला part also exists, but it's not that important. Not that pronounced, but logic part is, again, if I have to quantize it, it is 90% the logic wala part and 10% is just the English wala part, okay. Reading comprehension जो वाले part passage होते हैं, इसमें भी they are again logical passages, but logic part is just 10%. English वाला part इसमें थोड़ा सा ज़्यादा 90% हो जाता है. But इसको read करने का there is a specific way. Reading comprehension के जो questions हैं, they are 8 to 9 questions out of 20 questions. So if I have a really strong grip over this certain kind of a question, it means that half of the verbal is already done. Half of the verbal is already done. And the reading comprehension is only type of a question jahan pe it is exactly 0% knowledge oriented, 100% strategy oriented. 100% strategy oriented, 100% strategy oriented, 100% strategy oriented. Again, इसका मतलब क्या हुआ? Again, 100% strategy oriented with so much emphasis, but exactly इसका meaning exactly है क्या? Again, look at the passage. This is the GMAT passage. Okay, look at the passage. थोड़ा सा इसको वैसे के थोड़ा सा देखें. इसको थोड़ा सा if it shows up on the test because इसको देखिए start. अगर इस पैसेज को मैं देखता हूं जो मेरे अभी स्क्रीन पे अभी जो सामने है, you have to be 100% honest. अगर मैं इसका थोड़ा सा bird's eye view लूं, possible that the two words somehow were conspicuous. Possible that the two words were somehow conspicuous. One of the word is this one, and the other one probably they grabbed my attention initially. Probably, right? Probably make sense. किसी की attention grab की थी कि no? Probably. अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको देखा, ओके, इस पैसेज में देख लो ये जो वर्ड्स हैं, ये अगेन दीज आर डिफिकल्ट वर्ड्स.
kind of a word which I have never heard in my entire life. Not possible for anyone जिसको इस word का जिस किसी ने इसको word को पहले देखो in test में, okay? अगर ये देखा मैंने word ये थोड़ा italicized है, मेरी attention grab की, but you have to be 100% honest. If somehow I remove this word and you have to be 100% honest, even if it ruins my entire presentation. Even if it ruins my entire presentation, okay, you have to be 100% honest. If I remove these two words, what is the feel now? Is it seem, does it seem more manageable now? Does it seem more manageable? More manageable. You have to be 100% honest. More manageable as compared to earlier जब मेरे पास वो word exist करता था. More manageable or no? More manageable or no? The same. कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे ज़्यादा. कि अब मुझे ज़्यादा manageable लग रहा है. Fahad, Alisha, or I mean, I started reading from the top. I didn't look at the past. Okay, but if you look at it, अगर मैं अब देखूं कि जब उसने मेरी attention grab की थी, it looks more manageable now, right? Okay, something very important. This word was actually by design there. ये जानबूझ के वाला जो वर्ड है ये रखा गया था और इसको नॉर्मली इस तरह के वर्ड जब भी आ जाते हैं नेम्स आते हैं उनको आइटैलिसाइज किया जाता है लेकिन आइटैलिसाइज करने की वजह से उसके ऊपर एक एम्फेसिस आ जाता है एंड इट इज पॉसिबल दैट टेस्ट इट ग्रैब्स योर इट्स फर्स्ट थिंग टू ग्रैब योर अटेंशन इफ इट ग्रैब्स योर अटेंशन as the first thing or when you are reading it as when it grabs your attention your perspective of the passage somehow will be because you don't know the meaning of that word or know nothing about that word, you are unfamiliar. And there's something associated with the word unfamiliar, with the feeling of unfamiliarness. It is the fear of unknown. बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ठीक है अगर किसी चीज का नहीं पता तो उसका एक फियर आ जाता है इनफैक्ट अभी जो इस कंपनी के जो फाउंडर है मिस्टर बिलाल तारिक जो इनफैक्ट इज आल्सो द सीईओ एंड माय ब्रदर एज वेल सो वो कल बड़ी बस बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि जो जितनी भी साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं ओके जितने भी चाहे वो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हो चाहे वो डिप्रेशन या एंजाइटी भी हो समथिंग एज सिंपल एज स्टेज फ्राइट और समथिंग बिकॉज हम लोगों के लास्ट में तो एंगेजमेंट होते हैं हम लोग डिफेंस जाए तो वहां पे जाते हुए बात हो रही थी he was saying कि every thing जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनका जो कोर होता है जहां से ये निकलते हैं उनके कोर में there's only one thing which sits at the core it is fear Fear is at the core of every psychological disorder. चाहे वो anxiety है, चाहे वो depression है, चाहे वो stage fright भी just एक emotion होता है fear का emotion. उसकी वजह से सारे psychological disorders होते हैं आपको ठीक है अच्छा अब यहाँ पे इसका कहने का मकसद क्या है कहने का मकसद ये कि once you look at this passage you reach that word this is something which is unknown and when unknown there is an associated feeling which is the fear of unknown. Now suddenly this passage becomes a really difficult passage. But if somehow I have the strategy, जैसा मैंने अभी यहाँ पे ये किया था, इसको अगर मैंने कर दिया, there is nothing which is unfamiliar, not the same kind of fear factor now it generates. जो earlier शायद इसने एक fear factor generate किया था, making sense or no? Or am I just am I making sense? क्या किस तरीके से okay? So इसका मतलब ये है they are effective strategies to deal with this test. Effective strategies. Going to work 100% of the time. 100% every time, every single time. Reading comprehension is 100% strategy oriented, 0% knowledge oriented, 100% strategy oriented. If I have the strategies in place to tackle these passages, it is possible कि जो 9 question out of 20 question, I get those 9 questions. Even knowing anything about the subject matter, okay? No, मुझे कोई भी इसका subject matter नहीं भी पता, लेकिन if I have the strategies in place, 100% possible to get perfect score in the reading part में, okay? अब मैं reading part से क्यों कर रहा हूँ?
क्योंकि मुझे अपने आप को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ओरिएंट करना है हाउ टू टैकल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑन द टेस्ट। एक गोल को सामने रख वॉकिंग टुवर्ड्स दैट गोल। ओके, बट व्हाट इज द गोल कि मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट में इफेक्टिवली हैंडल करनी है। आई डोंट नो, आई थिंक सारों का ये फर्स्ट अटेम्प्ट है एसएटी जीआरई की। लेकिन अगर किसी ने अपनी लाइफ में एसएटी दिया हुआ कभी नहीं दिया हुआ? निशा, नो, आप लोगों ने एसएटी नहीं दिया था? आप लोग बहुत ये होता जाए। लेकिन पाकिस्तान में भी एक जमाना था कि एसएटीज नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान में भी हर यूनिवर्सिटी एसएटी की तरफ भागती जा रही। क्यों है ये यूनिवर्सिटी भागती है एसएटीज या जीआरई की तरफ? क्योंकि उनकी अपनी रैंकिंग ये ग्लोबल फैक्टर ले आते हैं कि यार हम लोग की जो एडमिशन है उसके जो ये कॉमन डिनोमिनेटर्स हैं एट फॉर एडमिशन करते हैं। एनीवेज, अगर किसी ने एसएटी दिया है या फिर किसी ने एसएटी जीआरई की पहली अटेम्प्ट दिया है, on the test day, if you don't have the strategies in place to tackle the reading comprehension, on the test day, the kind of a fear factor that reading comprehension questions generate is unlike any other question that you encounter. चाहे वो वर्बल के दूसरे क्वेश्चन है, चाहे वो मैथ्स के क्वेश्चन। लेट मी रिपीट, if you don't have the strategies in place, if you take the GRE cold when it comes to reading comprehension, it is going to be the toughest thing to handle on the test. The kind of a fear factor that reading comprehension generates on the test is qualitative as compared to any other question type on the test. If you don't have the strategies in place. But if you have the strategies and if you have mastered those strategies, they become really easy to handle. There are effective strategies in place. And reading comprehension is 100% strategy oriented. Reading comprehension is about looking at the things from different way. Things appearance change if you look at them from a certain way. हर चीज की जो अपीयरेंस होती है अंदर से इट इज सिमेट्रिकल इन नेचर। जिस तरह जो राउंड एक फिगर होती है वो सिमेट्रिकल होती है, ठीक है। जो चीजों की अपीयरेंस है वो चेंज हो जाती है। हम लोग देखे जब वो करते हैं, जब आप लोग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टारगेट होते हैं लेकिन देखते हैं दूसरी तरीके से, ठीक है। मेकिंग सेंस के नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप लोग को एक दूसरे तरीके से चीज को देखने लग जाते हो तो पर्सपेक्टिव हमेशा चेंज हो जाता है। Perspective. Perception change हो जाती है मेरी चीज को बारे में, ओके। Perception is bigger than reality. Perception is bigger than reality. फ्रीज हो जाऊंगा मैं ख्याल से, आप तो कंफर्टेबल हो, ठीक है। मैं फ्रीज होने में मेरे पॉजेज ज्यादा आते हैं, फिर मैं एकदम रुक जाता हूँ, मैं फ्रीज हो जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, perception is bigger than reality. Perception is bigger than reality. अगर मैं इसको एक डिफरेंट वे से देखने लग जाऊंगा तो मेरी परसेप्शन, एक चीज होती है साइकोलॉजी में अल्टर्ड परसेप्शंस, ओके। एक चीज होती है, आपने शायद इसको नहीं, अल्टर्ड परसेप्शन चेंज हो जाते हैं, अल्टर्ड परसेप्शन होते हैं। एक एनएलपी एक ब्रांच है, उसको क्या कहते हैं एनएलपी को, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, आई थिंक उसका नाम है। एक फील्ड है जो हम लोग अपनी एडवर्टीजमेंट में बहुत ज्यादा करते हैं। हमारा एक बंदा है जो कि है उस साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ द मार्केटिंग को देख रहा होता है, वो काफी मास्टरमाइंड है, वो देखता है। वो इनफैक्ट अभी उसका रोड स्कॉलरशिप में हो गया, सच रोड स्कॉलरशिप के फाइनलिस्ट वो पहुंचा था, लेकिन वहां से वो उसके 11 फाइनलिस्ट आउट ऑफ 600 एप्लीकेंट्स पे, वो बड़ा जबरदस्त इन चीजों को समझता है, जो साइकोलॉजिकल, नॉट मैनिपुलेशन बट मेकिंग द मैसेज इन अ सर्टेन वे, ओके, एंड एनी अदर टाइम। सो व्हाट आई वांट टू से इज if my perception of the passage is different, it is always bigger than reality.
इन रियलिटी रियली डजंट मैटर ये वो चीज कैसी होगी. ओके, अभी मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, अभी माय परसेप्शन ऑफ जीआरई इज कि इट इज अ डिफिकल्ट टेस्ट. बिलीव यू मी, मुझे अगर देखो कि या मैं या फिर किसी और को भी, मैं नॉर्मली इतना एकेडमिक पर्सन नहीं था, लेकिन समहाउ इस टेस्ट में मेरे अच्छा हो गया. ओके, बिकॉज दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टेस्ट, दिस इज अ डिफरेंट टेस्ट. फॉर इंस्टेंस एक नॉर्मली साइंस का पैसेज भी आता था जीआरई में. ठीक है, अब साइंस को मैं नॉर्मली किस तरह देखता था, मेरा जो एक चीजों को देखने का तरीका होता था. ओके, वो क्या होता था, जो भी मैंने साइंस देखी है अपने अंडर में देखी है, फिर मैंने हाई स्कूल में भी देखी, ओ लेवल्स में साइंस की, अगर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस and if I don't know about that concept, not possible for me to answer those questions. Okay, answer those. अब होता क्या, this is something is ingrained in my subconscious mind is always stronger than the conscious. और जो साइकोलॉजिस्ट बनाते हैं आइसबर्ग वाला, कि जहाँ पे सबकॉन्शियस जो है वो आइसबर्ग का ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, this is ingrained in my subconscious level. ठीक है, वो क्या है कि अगर मुझे साइंस का कोई टॉप वर्ड नजर आया, अगर मुझे उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता, नॉट पॉसिबल कि मैं उसके क्वेश्चंस जो उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस उनके मैं आंसर दे सकूं. ठीक है, नॉट ऑन द जीआरई, not on the GRE. GRE may, even if I don't know anything about that science part, even if I'll be able to answer those questions, because it is not the test of science. Science के words just show up, but whenever the words show up, they will never matter at all. बट मेरा माइंड को क्या होता है, मेरा माइंड ये कहता है कि अभी तक जो मैं साइंस के चीजें देखता था, अगर मुझे वर्ड का मतलब नहीं पता होता, साइड इफेक्ट ऑफ नॉलेज का, नॉट पॉसिबल फॉर मी, अगर मुझे एक केमिस्ट्री में एक नया एलिमेंट आ गया, उसको मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर सकूंगा. यहां पे चीजें इस तरह नहीं ऑपरेट करती. देयरफॉर दीस टेस्ट्स आर नॉट डिफिकल्ट, बट दे आर डिफरेंट. मेकिंग सेंस? ठीक है, तो इसका मतलब ये कि दिस टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगेन इज 0% once I have the strategy in place, तो फिर उनकी रेपिटेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है. ओके, मुझे पता चल गया स्ट्रेटजी तो बहुत थोड़ी सी छोटी सी स्ट्रेटजी है, मुझे पता चल गई, बट अगेन यू कीप ऑन अप्लाइंग दो स्ट्रेटजीज. ओके, उसका रीजन ये है कि इवन इफ आई स्टॉप अप्लाइंग द स्ट्रेटजीज, आई नो एवरीथिंग. एक्सपेरिमेंट आप लोग करके देखना है. जस्ट 10 डेज का मैंने ऑफ लिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मैंने छोड़ दिया. मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज में. ठीक है, जस्ट 10 डेज का मैंने ऑफ ले लिया. You will know the things, but you will not be able to apply those things. एक सर्टेन वे में मुझे अपने आप को लेके चलना होता है. इसलिए जो हम लोग है ना, इसको कहते हैं कि दिस इज अ जर्नी. Every journey you will reach the destination, but again you'll be following the protocols of that journey. ठीक है, if not, there can be a really bad situation. अब थोड़ा सा देखें इसको थोड़ा सा देखें. मुझे क्या करना है, मुझे ये करने की जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसकी तो मैंने वीडियोस देखनी है. ओके, लेकिन मुझे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की वीडियोस देख के समझना है वो चीजें, और फिर just you guys give me 1 second. ओके, सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है मुझे उसको मास्टर करना है. ठीक है, उसको मास्टर करने का तरीका ये है कि
जो स्ट्रेटजीज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, उन स्ट्रेटजीज को मैंने कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। उन स्ट्रेटजीज को जब मैंने अप्लाई करना है, तो मैंने बहुत ही सर्टेन वे में अप्लाई करना है। इफ यू रश, डोंट टाइम योरसेल्फ इनिशियली। If you rush, you will lapse back to the old habits. It's so powerful, always. इसलिए मुझे इसको रश नहीं करना। once I am going to apply those strategies, मुझे रश नहीं करना, अपने आप को टाइम भी नहीं करना मैंने इनिशियली। अल्टीमेटली दिस इज अ टाइम टेस्ट, हम लोग टाइम अपने आप को अल्टीमेटली करेंगे, ठीक है, बट नॉट दिस इज, बिगिनिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। शुरू में मैंने अपने आप को टाइम नहीं करना, बिगिनिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। Things messed up in the beginning can never be rectified. Things messed up in the beginning can never be rectified. Okay, things messed up in the beginning can never be rectified. कोई भी चीज हो, okay, things messed up in the beginning can never be rectified. इवन जो रिलेशनशिप भी होते हैं आपके, अगर किसी का अगर देखो कि वो रिलेशनशिप जो इनिशियली मेस्ड अप हो जाए, दे कैन नेवर बी रेक्टिफाइड। ओके, वो गॉन हो जाता है, गॉन केस हो जाता है। ओके, इट्स इन द सेम वे, इफ यू आर रीडिंग द पैसेज, जो इस पैसेज को मैंने अब डिफरेंट लेवल पे, ये बिगनिंग वाली जो फिलोसफी है वो अप्लाई होगी। मैंने अभी जो रीडिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करनी है, उसके जो रूल्स हैं वो डिफरेंट है। अभी जब मैंने रीडिंग का पैसेज पढ़ना स्टार्ट करना है, उसमें भी बिगनिंग्स आर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उसकी हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। अभी प्रैक्टिस जो मैंने फेस करना है, वहाँ पे जो मुझे रश नहीं करना, इस जर्नी के बिगनिंग वाले पार्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैंने रश नहीं करना, मैंने स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करना है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि परफेक्ट मैं जो है ऑफ कोर्स कौन सा कंटेंट को मैं साथ अब मैंने करनी कहाँ से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अपना फोकस करें, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इफ यू डोंट हैव द स्ट्रेटजीज इन प्लेस एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी मास्टर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑन द टेस्ट डे, kind of a fear factor is unlike any other question type जो जनरेट कर सकते हैं, उसका fear factor होता ही नहीं, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो अब किस्सा करनी है, आपके पास वीडियोस हैं, प्लीज आप लोग वीडियोस थोड़ा सा देख लेना, और मैंने क्या क्या करना है, और मैंने एग्जैक्टली क्या क्या करना है, उसको थोड़ा सा देखते हैं, उसको थोड़ी सी ओरिएंटेशन उसके भी हम लोग ठीक कर लेते हैं। There are certain publications जिनको मैं अगर रीड करना स्टार्ट करूं, और ये स्ट्रेटेजिक वे में रीड करना स्टार्ट करूं उन सर्टेन पब्लिकेशंस को, तो उसकी वजह से मेरी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो थोड़ी सी इजी होती जा रही है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे एक पैसेज आ जाते हैं जो कि बुक के रिव्यूज होते हैं। ऑफिशियल गाइड अगर किसी के पास है नहीं, तो हम लोग ऑफ कोर्स शेयर करेंगे, सारा मटेरियल हम लोग शेयर करेंगे, लेकिन वहाँ पे भी एक शॉर्ट पैसेज है जो कि बुक का रिव्यू था। It is a review of a book, एक certain type of पैसेज आ जाता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि मैं गार्डियन के जो कि बुक के रिव्यूज वाला सेक्शन में रोज एक रीड करूं, मैंने वहां से कॉपी करना है और मैंने पेस्ट करना है अपने वर्ड डॉक में, गूगल डॉक में। ओके, ये लोग आप लोग कलेक्टिवली भी कर सकते हो, एक ग्रुप बना के इस ग्रुप का, ताकि कोई भी बंदा रीड कर रहा है वो उसको कॉपी पेस्ट कर दे, या फिर अपने भी नोट्स अगर आप लोगों ने बनाने हैं, आप लोग अपने भी नोट्स बना सकते हो, ठीक है। उसको मैंने कॉपी किया, उसको मैंने पेस्ट किया, अब मैंने उसको रीड कैसे स्टार्ट करना है। आई एज्यूम कि काफी सारे लोगों ने वीडियोस हमारी देखी है, अगर नहीं देखी तो मैं फिर भी उसको थोड़ा सा साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किसी भी बुक रिव्यू के अंदर व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी बुक रिव्यू और रिव्यू ऑन एनीथिंग, जो यूट्यूब के भी रिव्यूज होते हैं, राइट, किसी भी चीज के ऊपर, योर ओपिनियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑथर्स ओपिनियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, ऑथर्स ओपिनियन, ऑथर इज एन इन्फ्लुएंसर, जो कि जो बात करेगा लोग नॉर्मली उसको फॉलो करने लग जाएंगे, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स इस तरीके से ऑपरेट करते हैं, उसका जो ओपिनियन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो अब होता क्या है, अब मैं रिव्यू के बाद इसको एक्स्ट्रापोलेट करूंगा बाकी पैसेजेस के लिए भी।
once you are reading the review, read for the opinion of the author. It is the most important thing in the reading passage. Is the most important thing in the reading passage. Okay, is the most important thing in the reading passage. Is the most important thing in the reading passage. The opinion of author's opinion is the most important thing in the reading passage. It is the most important thing in the reading passage. Once you know the opinion or the point of view, it is normally the conclusion. It is normally the conclusion. And once you get the conclusion, everything is the walk in the park. And if you don't get the main point of the author, or if you don't get his opinion, if you're not following, it means you are not following. If you're not following, you will not be able to comprehend anything. होता क्या है रियल लाइफ एग्जाम्पल में क्या होता है जिस तरह अभी कल बात हो रही थी यहाँ पे कि बेसिकली बात ये हो रही थी कि एक जो हमारे टीम मेंबर है वो बेसिकली वो कह रहे थे छोड़ के जाना चाह रहे थे तो उनकी ये बात हुई थी यार कि क्या वजह कि क्यों छोड़ के जाना चाह रहे हो तो उसमें ये हुआ था कि यार ये हुआ कि यार ये रीजन है ये रीजन है ये रीजन है और यहाँ पे बुनियादी नहीं मिलती ठीक है ना बुनियादी उसकी बैन कर दी थी मैंने उसका रीजन ये था कि हम लोग एक दफा जा रहे थे खारी मोड़ में और उसने कोई बुनियादी खानी थी वो तो मैंने कहाँ लेके चला गया और वहां पे मेरी गाड़ी मैंने कहा कि पापा जो बुनियादी है वो यहाँ पे बैन है प्रेपिस्टा में शुक्र था लेकिन कहने का मतलब ये कि बुनियादी भी उसने कहा कि आपने बैन कर दी है अच्छा व्हाट आई वांट टू से इज तो उसके बाद उसने कहा कि ये बुनियादी बैन है तो अभी आज मैंने बुनियादी नहीं खाई तो आज मैंने बर्गर खाया तो बर्गर बात ये बर्गर कौन सा खाया वो खाया तुमने बोला बर्गर खाया है बोला नहीं आपने बोला खाया है अब बात क्या हुई जो कि मेन पॉइंट था उससे बात अलग चली ठीक है मेन पॉइंट क्या था कि वो ऑफकोर्स रिजाइन करा तो बात जो वो बर्गर में चलती है कि बर्गर कौन से अच्छे हैं ठीक है दिस इज समथिंग जो कि इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि यू वर नॉट रियली फॉलोइंग दैट पर्सन यू वर नॉट दैट एंगेज्ड हमेशा जब इस तरह की बात निकलती है उसका मतलब ये होता है यू आर नॉट एंगेज्ड और समथिंग एल्स वाज रियली इंटरेस्टिंग जो नॉर्मली यू आर नॉट एंगेज्ड ओके यू आर नॉट एंगेज्ड you are not engaged okay what I want to say is if you don't get the main point you can never answer any question associated or you can never you just not getting that points that person's point of view you're not just following him for instance एक सीधी सा पैसेज इसको देखते हैं if I say I think ये मैंने वीडियोस में भी मेंशन किया जो दाश्ती के साथ वीडियोस थी और if you guys are interested अगर वीडियोस देखी राइट तुम लोग तो देखी राइट अनिशा आपको नहीं अनफॉर्चुनेट टाइम मिल सका अच्छा उसमें वो जो लड़का था वो इनफैक्ट हमारे पास आया था अहमद दाश्ती तो उसकी सिचुएशन ये थी कि उसने कैसे हमें ढूंढ लिया कि यार ये जो हम लोग एक इंटरनेशनल कम्युनिटी उसकी भी पार्ट है वो बीट द GMAT क्लब है उसको कैसे पता चला कि यार ये लोग जो हैं ये भी करवाते हैं उसकी जब हमसे पहली दफा बात हुई ना उसको हम लोगों ने कहा कि यू जस्ट गिव अस 10 आवर्स आफ्टर 10 आवर्स यू विल बी एट परफेक्शन उसने मुझे बाद में कहा कि जब आपने ये बात की थी तो मुझे ये था कि 100% पाकिस्तान के फ्रॉडी है ठीक है ना नॉट पॉसिबल कि 10 आवर्स पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिकॉज़ ही वाज स्ट्रगलिंग बिग टाइम विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और 5 साल से उसका GMAT डिटेल पर जाना था तो उसका ये था कि यार ये पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और ये यकीनन ये फ्रॉड है ये नहीं हो सकता कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 आवर्स में हो गई उसकी हो गई थी आखिरी ये 10 आवर्स उसके साथ सेशन हुए थे और ऑफ सीजन में हुए थे ऑफ सीजन में हम लोग चार्जेस तो ऐसे कम हो जाते हैं $50 हो सकता फॉर एन आवर अब वो इनफैक्ट हम लोग 1 on 1 बल्बल के तो देते ही नहीं अनफॉर्चुनेटली अच्छा व्हाट आई वांट टू से इसके उसके बाद उसके परफेक्शन तक पहुंच गई थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और उसका कैनन फ्लैगलर में हो गया था ऑफकोर्स कैनन फ्लैगलर इज नॉट हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड ये टॉप 20 में आता है बिजनेस बुक में अच्छा बिजनेस स्कूल है एटलीस्ट प्लेसमेंट्स अच्छी है जहाँ पे वो ऑयल एंड गैस में कुवैत का लड़का था ऑयल एंड गैस में उसकी थोड़ी सी आई थिंक स्पेशलाइजेशन करना चाहता था तो आई थिंक मैकॉम्स की अच्छी है स्पेशलाइजेशन और इसकी भी ठीक थी और आई वांट टू से इज कि ये हो गई थी चीजें हो गई थी ओके और इस पैसे उस वाले कोर्स में शायद मेंशन किया था दिस इज रियली इंपॉर्टेंट इफ आई से लुक एट दिस थिंग if I say every Thursday my friend Ron comes over every Thursday my friend Ron comes over and by the Friday morning all the food in the refrigerator that is fresh apples mangoes bananas fresh vegetables fresh fruits chocolates
all the food is gone. And by the Friday morning, all the food that is mentioned is gone. अब यहाँ पे हुआ क्या? Do you guys know what I am trying to say? But my main point is, क्या है? Food is gone. अब main point is कि वो आप मेरे दोस्त आता है वो खा सकता है. क्योंकि this is the message that I want to communicate. मेरा मेन मैसेज ये भी था कि फूड मेंशन करना, वो जो रेफ्रिजरेटर में था वो मेंशन करना, वो मेरे मेन पॉइंट में आता था कहीं पे. मेन पॉइंट था नो, वो जस्ट एक डिटेल थी. ओके, अब इसको है क्या सीन, क्या सीन ये है कि once I read the passage, I give it a read for the main point, for the structure. Once I know the main point, जो बाकी चीजें जो होंगी, जो डिटेल्स मैं एनकाउंटर 100% करूंगा. 100% I'm going to encounter the details. 100%. And the questions are going to be asked from the details as well. ठीक है? 100% details आएंगी, but not possible for you to remember each detail. अगर उस डिटेल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं उस पार्ट ऑफ द पैसेज में चला जाऊंगा वापस, और फिर जाके मैं उसको क्लोज रीड दूंगा, और फिर मैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर, उसका जो आंसर होगा वो दे सकूंगा. Once I am reading the passage and I encountered the detail, the details while reading the passage are not important, because anyway I'll not be able to remember the detail after just 2 to 3 seconds. For instance, in that silly passage that I just mentioned, can anybody let me know exactly the food in the refrigerator? No, exactly no. Okay, अब इसका मतलब ये है कि not possible for me to remember every detail written inside the passage. Not possible for me to remember every detail mentioned in the passage. Okay, not possible for me to remember every detail written inside the passage. Not possible. उसका reason is not again psychological, it's a biological reason. उसका reason ये है कि your brain has 2 types of memories. एक होती है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक होती है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है. ओके, जस्ट लाइक अ कंप्यूटर में एक होती है रैम होती है और एक होती है हार्ड ड्राइव होती है. ओके, रैम की जो स्टोरेज होती है वो कम होती है, लेकिन रैम से डाटा रिट्रीवल काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है. ओके, लेकिन जो हार्ड ड्राइव होती है उसकी स्टोरेज बहुत ज्यादा होती है, लेकिन डाटा रिट्रीवल थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लेता है. ओके, अभी तो खैर प्रोसेसिंग बहुत तेज हो गई है अभी, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू रैम जो होती है. उसकी वजह से मैं जो डाटा रिट्रीवल बहुत ज्यादा फास्ट होता है. ओके, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रैम होगी उतना ज्यादा जो रियल टाइम की जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली गेम्स जो होती है वो अच्छी तरीके से ऑपरेट करती है. ठीक है, गेमिंग जो लैपटॉप्स होते हैं वो इस तरीके से, कंप्यूटर्स इस तरह ऑपरेट करते हैं, रैम बहुत जबरदस्त हो जाती है. और बाकी भी चीजें चाहिए होती हैं, जैसे उनके जो वीडियो कार्ड होता है उसकी भी रैम होती है, राइट, जो उसका वीडियो कार्ड होता है गेमिंग लैपटॉप्स का. व्हाट आई वांट टू से इज कि इसी तरह मेरी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो रैम की तरह ऑपरेट करती है. उसकी कैपेसिटी कम होती है. वंस द कैपेसिटी इज फुल आई गेट ओवरवेल्म्ड. इवन आफ्टर रीडिंग द सेम सेंटेंस, नॉट पॉसिबल कि मैं उसको रजिस्टर कर सकूं. नॉट पॉसिबल कि मैं उसको रजिस्टर कर सकूं. ओके, अगर मेरी जो कि ओवरवेल्म स्टेट में मेरा माइंड पहुंच गया, नॉट पॉसिबल मैं उसको रीड करूंगा, मैं रजिस्टर ही कुछ नहीं कर सकता. उसका मतलब ये है कि मुझे जो अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में फिल करना है. इफ आई एनकाउंटर द डिटेल्स, आई डोंट ट्राई टू गेट द डिटेल्स, because if I try to get the details, I'll get overwhelmed. You'll be making the easiest possible passage on earth the hardest passage. अगर तुम लोगों के पास ये वाला सीधी पैसेज लिखा हुआ आ जाता जो भी मैंने मेंशन किया था, अगर तुम लोग रीड कर रहे हो, तुम करो कि यार मैंने इसके आंसर देने, तो मैं फूड इन द रेफ्रिजरेटर मुझे किसी तरीके से याद हो जाए तब आगे जाके दूं. You will be making the easiest passage impossible to handle. Easiest passage impossible to handle. Easiest passage impossible to handle. Does it make sense or no? Not make sense.
easiest passage impossible to handle. Okay, if you don't have the if you try to get everything written in the passage, you will be making the easiest passage impossible to handle, just plainly impossible to handle. ठीक है, तो मुझे जो रीड करना है when I encounter the details, तो बस ये important हो जाता है where that certain detail is mentioned. What that detail is not really important, but what it does is somehow, वो अगर मुझे पता चल गया, I'm good to go. Focus while I'm reading the passage. I read it for the main point and for the structure. The things that I also mentioned in that video course. Okay, read for the main point and for the structure. Main points exactly क्या होते हैं? अगर main points को मैं अगर बात करूँ तो वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? Any type of a sentence can just be classified in 3 categories. Okay, 2 categories are really important, but normally any kind of a sentence can be classified in 3 categories. एक जो होता है वो ये है कि it's a background information, or is it a fact, or it is a point of view. अगर मुझे ये तीनों चीजें मिल रही हैं, the most important thing is the point of view. पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रेंथन करने के लिए फैक्ट्स होते हैं. अगर मुझे ये चीज समझ आ गई, आई एम गुड टू गो, एंड इवन विद दिस थिंग आई कैन आंसर 100% ऑफ द क्वेश्चंस. इसको थोड़ा सा देखते हैं इसका क्या है. पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या, और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के ऊपर बात करते हैं, बहुत इजी होती है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको देखते हैं. टू थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट. एक है फैक्ट्स और एक है उन फैक्ट्स दैट फैक्ट्स लीड टू सम कंक्लूजन. Facts leading to some conclusion. Okay, facts leading to some conclusion is really important. Facts leading to conclusion. Facts leading to conclusion. Facts क्या होते हैं, conclusions क्या होते हैं? Facts point conclusion and point of views as well. So if I say it is raining outside, can you dispute with me? If it is raining outside, अगर rain हो रही है, okay, it's a fact. Facts are indisputable. Sun rises from it, it's a fact. Okay, facts पे dispute नहीं किया जाता, but facts को लेके you can reach the conclusion. Conclusions पे disagree किया जा सकता है. So if I say it's raining outside, fact. Therefore, we should not go to Islamabad by HGT road. This is my opinion. Same person can have, he will agree with the fact. वो कहेगा कि although it is raining outside, still we have to go to Islamabad because the meeting is really important. Okay, facts को deny नहीं किया जा सकता. और फिर ये क्या, passages में आपके facts होते हैं, उन facts की बेस पे conclusion होते हैं. इसको पूरी चीज को नाम कहा जाता है, इसको कहते हैं argument कहा जाता है, argumentation कहा जाता है. Okay, GRE की language में argumentation आपके passages में अगर होती है, तो मैंने देख लिया कि यार ये जो फैक्ट है और ये फैक्ट है, इस चीज की तरफ, इस फैक्ट जो होगा वो किसी कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा होगा, या फिर वो कभी कभी पूरा ही फैक्चुअल पैसेज हो जाता है. हम लोग उसको भी नहीं करते हैं कि बस फैक्ट्स का ओपिनियन ऑथर का, किसी का भी नहीं है, ना ऑथर का ओपिनियन ना किसी और का ओपिनियन है. साइंटिफिक पैसेजेस नॉर्मली हो जाते हैं इस तरह. बट इफ इट इज अ फैक्ट एंड इफ इट्स अ कंक्लूजन, द कंक्लूजन पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट. कंक्लूजन जो है वो उसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ व्यू है. इफ दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑथर, मोर ऑफन देन नॉट इज द मेन पॉइंट. And once you get the main point, and once you have the structure in place, not possible to get even a single question incorrect. Not possible to get even the single question incorrect. उसका reason क्या है? By the end of the passage, you need to have the main point of the passage. या primary purpose of the passage, big picture की questions है वो मुझे आने चाहिए, या फिर structure जो है वो passage organize किस तरह किया गया, उसका मुझे organization structure मुझे बताना चाहिए. ठीक है? You have a main point, you have a structure. Structure will work like a table of content. Structure will work like the map of the building. Structure will work like the Google map. कि मुझे exactly यहाँ पे ये चीज पढ़नी है. Small picture questions के लिए, if you can understand कि I'll have to go to that part of the passage, and you know the main point, and now from the main point के lens से you are approaching that part of the passage, and now you are getting it, then going to the answer choices, you will be able to get the answer correct. So the most important thing once I'm reading the passage is
Give it a read for the main point and for the structure. Main point and for the structure. Main point, if author has an opinion, it is going to be the main point or part of the main point. If there is no एक passages होते हैं in which the author is absent. Author का जो point of view कोई नहीं होता, कि उसने कोई process को describe किया होता है. In that case, it is the summary. बाद में आते हैं, okay, बाद में आते हैं उसकी तरफ. But if the author is present, what is author's voice और author का जो opinion क्या था, मुझे वो पता जाता है. बाकी चीजें फैक्ट्स होती है, उससे रिलेटेड होंगी. फैक्ट्स कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहे होते हैं और कंक्लूजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वंस आई गेट द कंक्लूजन, मुझे पता है कि ये वाला फैक्ट कहां पे मेंशन था, किस फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा. आई विल कम बैक टू दैट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पार्ट ऑफ द पैसेज, और उसको मैं वहां पे क्लोज रीड दूंगा और फिर मैं उसको वहां पे क्लोज रीड देने के बाद आई विल गो टू द आंसर चॉइसेस एंड देन आई विल गिव इट द आंसर. वहां पे मेरी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो भी ज्यादा इफेक्टिव होगी. शॉर्ट टर्म मेमोरी इफेक्टिव, ये क्या चीज है, इसको थोड़ा देखते हैं. These are your resources. There are few resources which are of utmost importance. एक तो ये होता है कि मैं वहां पे at the end of the day exhaust ना कर जाऊं. Okay, this exhaustion हो जाए मुझे, मैं exhaust अगर करके मुझे इतना अच्छा, almost 4 hours long test, बहुत बड़ा टेस्ट होता है. इनफैक्ट अगर मुझे ये पता है, और फोकस जो होता है वो मेरा लूज कर सकते हैं. फोकस इज अ मसल. फोकस इज अ मसल. इनफैक्ट अब्राहम लिंकन और बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो अपनी जितनी भी, अब्राहम लिंकन की अगर किसी ने पढ़ी हुई है बायो, तो वो बहुत ही उसकी लाइफ में बहुत एक बहुत नीचे से उठा था वो बंदा. ओके, उसका जो वो अपनी जो सारी अचीवमेंट्स थी ना, जो उसकी मेंटल प्रोग्रेस थी, वो उसको करता था एसोसिएट विद उसका फोकस. उसका फोकस इतना अच्छा होता था अब्राहम लिंकन का कि अगर रूम में बहुत ज़्यादा नॉइज भी अगर कोई रीड कर रहे हैं ना, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था. ओके, तो फोकस इज अ मसल, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मसल होता है. अभी क्यों लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सोशल मीडिया जो है वो बहुत बिग डिस्ट्रैक्शन हो गया. आप नॉट पॉसिबल कि आप अपने जो एक डिस्ट्रैक्शन, बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन, जिसे वो कहते हैं कि गोल्ड फिश की जितनी हमारी हो गई है, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया. ठीक है, व्हाट आई वांट टू से इज कि इस जर्नी में आप लोग मुझे नजर ना हो सोशल मीडिया में. यकीन करो, यकीन करो, this is the worst thing that you guys can do. Somehow your social media, if it is not really important part of your life, it's contributing in some way, please social media को कम कर दो, because it has a devastating impact on your focus. Even resisting the yearn to check the social media has ramifications. Making sense or no? This test comes under the umbrella of something which is called a psychometric test. Some of you are very high level professionals, just like Shabano is. Shabano is, of course, professional. Some of you are not in the professional world as of now. But what I want to say is कि ये बात मैं एग्जैक्टली क्यों कर रहा हूँ, एग्जैक्टली इसका रीजन क्या है. इसका रीजन ये है, एक बात है, क्या बात कर रहा था. ओके, यस, ओके, yeah, these tests are called psychometric tests. Okay, साइकोमेट्रिक टेस्ट की कैटेगरी में ये टेस्ट आते हैं. ओके, साइकोमेट्रिक टेस्ट, जब आप लोग ये these tests are so important that once I'm applying to a top level companies such as Siemens or P&G, right? P&G, in fact, P&G
कंज्यूमर पैकेज सीपीजी जो होते हैं, एक तो होता है एफएमसीजी, एक होते हैं सीपीजी, ओके। जिस तरह आपके पीएनजी सीपीजी में आता है कंज्यूमर प्रोडक्ट में। सबसे जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस होती हैं वो मार्केटिंग की होती है, ठीक है। जो जिसे हम लोग टेलीकम्युनिकेशन में जब थे तो वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑप्टिमाइजेशन का डिपार्टमेंट बड़ा पावरफुल होता था, इतना पावरफुल होता था। जब मैंने अप्लाई किया था, मेरा था कि मैं फ्रीक्वेंसी ऑप्टिमाइजेशन, जब मुझे नहीं अगर ऑप्टिमाइजेशन अपॉर्चुनिटीज, मैंने पूरी फील्ड ही छोड़ दी। मेरा ये था कि मैंने किसी दूसरे प्रोग्राम में काम ही नहीं करना, मैं अपना फील्ड चेंज कर दी थी, ठीक है। तो जो सीपीजीज होते हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट तो मार्केटिंग के डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। किसी ने अपना मार्केटिंग में बहुत ज्यादा करना तो वो सीपीजीज में जाते हैं। मार्केटिंग में चिंता आगे तो क्या मार्केटिंग में जाना है। व्हाट आई वांट टू से इज कि जो बेस्ट कंपनीज आउट देयर, इनके लिए भी आपके टेस्ट होते हैं। इफ यू मास्टर दीज थिंग्स, दिस इज अ लाइफ टाइम एसेट। ये आपके थ्रू आउट इन टेस्ट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ये चीजें, ठीक है। एक ये चीज, और ये मुश्किल चीजें नहीं है, राइट। ये काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट यू विल बी क्रिएटिंग जो आपको आगे भी बहुत जाके काम आता रहेगा, ठीक है। मेकिंग सेंस, राइट। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था कि इसमें एक सर्टेन वे में मैंने अपने आप को कंडक्ट करना है इस जर्नी में। मुझे somehow social media is going to be your biggest enemy in this journey. Okay, social media is going to be your biggest enemy. Social media is such a nonsense कि हम लोगों की टीम के 3 बंदे हैं जो कि सोशल मीडिया को देख रहे होते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर हम लोग भी सोशल मीडिया को देखने लग जाएं तो ऑफ कोर्स सोशल मीडिया will suck you in. If you think yourself as a smart person, it will have more impact on you as a smart person. स्मार्ट पर्सन को ज्यादा बुरी तरीके से सोशल मीडिया पकड़ती है, बहुत बुरी तरीके से पकड़ती है, ठीक है। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि मैंने क्यों करना है। आफ्टर 21 days you will be a totally different person, totally different person. 21 days जो होती हैं, शायद आप लोगों को पता हो, इस चीज का ना भी पता हो, जो ब्रेन है ना वो रीवायरिंग हो जाती है 21 days में। You will have a difficult journey for the bus just for the initial 21 days. वो withdrawals होते हैं, okay? Withdrawals पता ही है क्या होता है। अगर कोई सिगरेट बंदा छोड़ना चाहता है उसको विड्रॉल हो रहे होते हैं, बार बार उसको सिगरेट पीना होता है, ओके। लेकिन एक सर्टेन टाइम को अगर हम लोगों ने गुजार दिया तो विड्रॉल्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप भी जब ब्रेकअप्स होते हैं तो वो इनिशियली जो होता है फेस वो विड्रॉल्स का होता है, उसके बाद आप बहुत चिल हो जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं कि यार जान छूटी है मेरी। लेकिन व्हाट आई वांट टू से इसके जो 21 डेज में आपकी रीवायरिंग हो जाती है, 21 डेज जो होते हैं वो रीवायरिंग हो जाता है। हम लोगों ने और अपने एक नए तरीके से चीजों को देखना स्टार्ट करना है। वायरिंग रीब्रेन की आप लोग ये भी बात कर रहे हैं। हम लोग करते क्यों है मैथ्स, ये हम लोग कर क्यों नहीं। जो जीआरई की क्वांट है वो हम लोग कर क्यों नहीं, उसका रीजन क्या है। एक दो कि मैं तो जिस मेजर की अप्लाई करूँ वहाँ पे तो क्वांट यूज ही नहीं होगी, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ। और ये जो टेस्ट है ये कंसिस्टेंटली क्वांट को क्यों टेस्ट करते हैं, चाहे वो एसएटी है, चाहे वो जीआरई है, चाहे वो जीमैट है, ओके। वो क्वांट को क्यों इतना एम्फेसिस हो जाता है, जो मैथ्स वाला पार्ट है। उसका रीजन ये है कि इनफैक्ट एक फिलोसोफर आई होप कि आप शायद किसी ने नाम सुना उसका, अभी करंट जो जिस एरा में उसमें काफी उसका नाम है नील डी ग्रास टाइसन। हैज एनीबॉडी हर्ड ऑफ नील डी ग्रास टाइसन? ओके, वो एक फिलोसोफर है अमेरिकन और ये एक अच्छा फिलोसोफर है। तो उसका ये उसने इसका रीजन किया है, the kind of the circuits that you have after going through the high school maths, not any other maths, high school maths. High school की जो maths होती है उसको go through करने के बाद the kind of the circuits that are developed are exactly the same circuits which are needed to solve to have your problem solving capabilities. Problem solving, problem solving, problem solving. Problem solving is something which is directly related to innovation. This world we are living, what could have been discovered has already been discovered. No room for discovery, new discoveries नहीं है। चाहे अब वो स्पेस की डिस्कवरीज है वही होती जा रही है और देयर इज नो डिस्कवरी, नो न्यू डिस्कवरी। अगर कोई नई बीमारी आ जाए तो उसकी वैक्सीन हो जाए, लेकिन what I want to say is what could have been discovered has been discovered. What could have been invented seems like has been invented.
inventions बहुत ज़्यादा scarce है, वो दो हो जाती होंगी लेकिन बहुत scarce है. There was an era of invention and there is an era of discovery. अगर हम लोग पास में देखते हैं, this is an era of innovation. Innovation is solving the old problem with the new solution. New solution. और दिस इज समहाउ द सेम काइंड ऑफ ब्रेन सर्किट जो हम लोगों को वहां पे भी चाहिए होते हैं. इसलिए इन कंपनीज के भी वो टेस्ट आपके देखते हैं कि आपकी कितनी जबरदस्त वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, और ये टेस्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर आते हैं. ठीक है, डज इट मेक सेंस के नो? व्हाट आई वांट टू से इज कि दिस टेस्ट is something which is important for my GRE performance, but also beyond. Okay. आप लोगों को पता है कि नॉर्मली जो पहली जॉब होती है वो डिफिकल्ट होती है. वंस यू गेट अ जॉब, और फिर जो बाकी जॉब्स होती हैं वो नॉर्मली वो एक्सपीरियंस के बेस पे मिल जाती है. ठीक है, लेकिन जो एंट्री लेवल जॉब्स होती हैं उनमें आपको ये टेस्ट पे से आ जाते हैं सामने. हर जगह पे एंट्री लेवल जॉब में अगर इस तरह के टेस्ट नहीं है तो आप लोग प्लीज वो जॉब ना कीजिएगा, वो इतनी अच्छी जॉब नहीं है. ठीक है, इवन कि हम लोगों को भी यहाँ पे किसी ने अप्लाई करना होता है तो आप लोग अगर हमें इंटरनेट पे किसी ने फॉलो किया ना तो हमारे एटलीस्ट दुश्मन बहुत ज्यादा आप लोगों को मिल जाएंगे इंटरनेट पे. यकीन करें, अभी मुझे बता रही थी हमारी जो PR मैनेजर है हानिया रहमान, के उनसे डिस्कशन हुई थी. उन्होंने कहा कि यार ये जो हेलो पे एक पोस्ट है वहाँ पे नीचे ना किसी लड़की ने कमेंट किया हुआ था, फातिमा लिया करते, वो पूरा कमेंट था, नाम उसकी लड़की थी. अब रीजन बेसिकली है क्या? कहने का मकसद ये है कि अगर किसी ने हम लोगों को टीम मेंबर्स में भी ज्वाइन करना हो ना तो हम लोगों की जो एंट्री बैरियर्स है वो बहुत हाई है. जो हमारे स्कोर की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बहुत हाई होती है. इवन दो कि अगर आप स्कोर लेके अगर आपका अभी कि अगर आप टीम के मेंबर नहीं बन सकते अगर आप सर्टेन प्रोटोकॉल्स को फॉलो ना करें, और इंस्टेंट हम लोगों का एक कल्चर है कंपनी का क्या आउट, इंस्टेंट आउट. अगर आप लोग कभी देखेंगे भी तो हम लोग के भी एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम था जहाँ पे इंटर्निस था, और ज्यादा इंटर्निस को अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने लम्स के साथ हम लोग बहुत क्लोजली एसोसिएट, लम्स से हम लोग GRE भी करवाते हैं, लम्स के साथ लोग SAT भी उनके समर स्कूल में करवाया उनको, लम्स के साथ प्रेविस्टा के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं. तो इवन दो कि वो हो सकता था ये कि जी इंटर्नीज वहाँ पे चले जाएं पहुंच जाएंगे यार ये हम लोगों को इतने एक्सपेल करती है, राइट. लेकिन समहाउ जो हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है अपने कल्चर को मेंटेन रखना, और एक सर्टेन के जो टीम मेंबर्स हैं अगर नहीं परफॉर्म करेंगे दे विल बी आउट. जो इनफैक्ट मैकेंजी में भी यही होता है, जो कंसल्टेंट की जॉब्स होती हैं उसमें भी अप या फिर आउट का कल्चर होता है. यू परफॉर्म एंड यू गो अप और यू आर आउट. ओके, स्टैग्नेशन का कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं होता, तकरीबन यहाँ पे भी. व्हाट आई वांट टू से इज कि जो बेस्ट जॉब्स हैं बात यहाँ से चलना स्टार्ट हुई थी, जो एंट्री बैरियर्स होते हैं फिर वहाँ पे कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करना होता है. एंट्री जो होती है वहाँ पे बार टेस्ट फिर से आपको काम दे देते हैं. यहाँ पे जो थॉट प्रोसेस होता है क्योंकि दे आर साइकोमेट्रिक टेस्ट. साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होते हैं उसकी और क्या चीज होती है, बिकॉज साइकोमेट्रिक टेस्ट को क्यों कहा जाता है और ये क्यों डिफरेंट हो जाते हैं? एज आई सेड कि यार ये डिफिकल्ट टेस्ट नहीं होते लेकिन ये डिफरेंट टेस्ट हो जाते हैं. द वे दीज टेस्ट आर मेड इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट थिंग, और उसकी वजह से जो हमारा मटेरियल हम लोगों ने किसको कंसिडर करना होता है. द क्वेश्चंस के जो क्राफ्टिंग होती है ऑफिशियल मटेरियल की, देयर इज अ स्टैटिस्टिक. एक लड़का है GMAT का, GMAT निंजा नाम है उसका, अमेरिकन ट्यूटर है, वैसे लैटिनो है लेकिन काफी अरसे से वो अमेरिका में ही है, लैटिन बैकग्राउंड है उसका. अच्छा, उसने एक सर्च की थी GMAT निंजा ने, वो बड़ी जबरदस्त सर्च की. उसने मेंशन किया था स्टैट्स जो भी अवेलेबल है GMAT के आते थे. उसमें ये था कि GMAT एज एन ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड $3,000 इन द क्रिएशन ऑफ अ सिंगल क्वेश्चन. $3,000 यानी कि आजकल की उसमें तकरीबन 6 लाख रुपया. ठीक है, $3,000, और ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट था, जो लग रहा था वो इससे भी ज्यादा ये लोग खर्च करते हैं. इनके जो क्राफ्टिंग का जो प्रोसेस होता है ऑफिशियल क्वेश्चंस का वो टोटली डिफरेंट होता है, स्पेशली वर्बल के क्वेश्चंस का एज कंपेयर टू द थर्ड पार्टी सोर्सेज. थर्ड पार्टी सोर्सेज कौन कौन से वर्बल के इंग्लिश के? वो है मैनहट्टन के रिसोर्सेज हो जाएंगे, मगूश के रिसोर्सेज हो जाएंगे. वो इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, उनको हम लोगों ने यूज करना है, वो भी हम बताएंगे कौन सा चीज ठीक है. लेकिन हम लोगों ने वर्बल में सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल मटेरियल से ही स्टिक रहना होता है. उसका रीजन क्या होता है कि उन्होंने इतने पैसा खर्च कर दिया, बस ये रीजन है कि हम लोग, क्योंकि उन्होंने खर्च किया तो हम लोग अब टाइम लगाए. उसका रीजन ये होता है कि ये जिस तरह क्वेश्चन बनते हैं इनके मल्टीपल लेवल पे एडिटिंग होती है. इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ये पूरी टीम होती है. यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स भी होते हैं, इंग्लिश का एक्सपर्ट, मैथ्स का एक्सपर्ट, लेकिन जो मोस्ट पावरफुल पर्सन इन टीम होते हैं वो होता है साइकोमेट्रिशियन होता है वो बंदा, जिसको साइकोमेट्रिशियन कहा जाता है. जो डिटेक्टिव्स होते हैं ना, FBI के डिटेक्टिव्स, वो भी साइकोमेट्रिशियन होते हैं. दे नो दैट एट विच पॉइंट ऑफ टाइम यू विल मेक व्हाट काइंड ऑफ mistake and it will lead to what kind of an evidence. They know these things.
जो डिटेक्टिव्स होते हैं, साइकोमेट्रिशियन इज अ फील्ड ऑफ साइंस विच इज द मेजरमेंट ऑफ माइंड के इन व्हाट वे यू आर गोइंग टू मेक व्हाट काइंड ऑफ अ मिस्टेक। ओके, तो ये जो बंदे होते हैं इनको भी पता होता है कि अगर हम लोग एक वर्ड को आइडेंटिफाइज कर देंगे और ये मुश्किल वर्ड रखेंगे जानबूझ के, तो फिर इवन दो हम लोग अपने जो हम लोगों का स्टांस है कि दीज टेस्ट आर गोइंग टू टेस्ट द आंसर, आप लोग हमेशा कर सकोगे इवन दो अगर आपको सब्जेक्ट मैटर नहीं भी पता, ये इनका स्टांस होता है हर टेस्ट का, हम लोग उससे भी स्टिक रहेंगे, इवन देन हम लोग एक डिफिकल्टी लेवल भी लेकर आ रहे हैं। मेकिंग सेंस और नो, नॉट मेकिंग सेंस? ओके, तो फिर ये दे आर रियली स्मार्ट पीपल। प्रिंसटन जी ऑफर करती है डिग्री साइकोमेट्री, मेरी जो कंपनी हमारी सीईओ मिस्टर बिलाल तारिक, तो उनका था वो इनफैक्ट नर्स में जब थे तो उनका भी इन टेस्ट में एक इंटरेस्ट पैदा हुआ था, और फिर उनका ये था कि आज टेस्ट को अच्छी तरीके से हम लोग क्या करें और हो जाए, लेकिन वो मुश्किल डिग्री, काफी मुश्किल डिग्री है। तो उनका फिर वो पीछे छोड़ के उन्होंने छोड़ा, ऐसे बेहतर है कि आसान है अपनी कंपनी को बिल्ड कर लेना, जाके उस कंपनी को बिल्ड करके उसको एक्वायर करवाएं $1 million की, वो ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू जाके उसकी डिग्री लेना स्टार्ट करते हैं। व्हाट आई वांट टू से इज के वो बहुत स्मार्ट लोग होते हैं। These tests are different because ये thought process change करना होता है हम लोगों ने, और एक डिसिप्लिन लेके आना होता है। वायर जो होता है वो रीवायरिंग मैंने करनी होती है, मुझे अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज करना होता है। अगर चेंज मैं नहीं करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा? दिस इज अ हार्श, वेरी हार्श थिंग, वेरी हार्श ट्रुथ अनफॉर्चुनेटली। Somehow if you try to cut the corners, and these things are not applied on me, maybe on some other person but not on me, I'll stick with my game plan. If you try to cut the corners, unfortunately not be able to live up to your potential. ठीक है, सो डोंट कट द कॉर्नर्स, जो भी हम लोग कह रहे हैं उसको आप लोगों ने करना है। सोशल मीडिया 100% आप लोगों को उसको करना पड़ेगा, या फिर प्लीज उसका रीजन क्या हो जाता है या फिर मुझे उसको बहुत ही सिवियरली लिमिट करना पड़ेगा। उसका रीजन ये होता है कि बेसिकली द थिंग इज के बेसिकली द थिंग इज कि अगर हैबिट मेरी क्या है, डिफॉल्ट हैबिट क्या है कि मैंने नोटिफिकेशन देखा और जाके मैंने फॉरन नोटिफिकेशन को जाके मैंने प्रेस किया कि वहां पे क्या है। ठीक है, अगर आप इसको अर्ज करोगे ना, अर्ज विल टेक योर मेंटल एनर्जी, एंड योर मेंटल एनर्जी इज लिमिटेड, इज लिमिटेड। ओके, आपकी जो मेंटल एनर्जी है, और इसलिए जो ये कंपनीज होती हैं इनकी नोटिफिकेशन इसलिए ऑपरेट करते हैं ताकि आपकी जो आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर देते हैं, और जो आप मेंटल एग्जॉशन इज समथिंग दैट इज अगेंस्ट द एंट्रोपी। आप नहीं चाह रहे होते कि आप ना एग्जॉशन हो और आप अर्ज को करते हो। ओके, एक अर्ज करते हो, लेकिन दीज थिंग्स आर अगेन जस्ट ओनली वन डे स्टिक विद यू विल बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन, totally different person. You feel much more powerful if you can dominate this thing. अब होगा क्या यहाँ पे? This is not just a test of concepts, it's a test of nerves as well. Psychological part of the equation is a very important part of this test. Psychological part of this equation. I hope कि आप लोग इसकी चीजें समझ रहे होंगे और इन चीजों को आप लोग समझ रहे होंगे कि इन चीजों को मैंने अप्लाई किस तरीके से करना है, मैंने अपने आप को डिसिप्लिन किस तरीके से करना है। somehow borderline obsession मुझे होनी चाहिए GRE के साथ। Just take a single day off in entire week, no GRE, perfectly fine. But somehow, अगर मेरी वहाँ पे obsession आ जाती है, the champions are always obsessed people. They're not normal people, okay? जो obsession जो होती है, अगर जो इस कंपनी के जो लाल CEO हैं, so he's also a mild OCD. OCD is obsessive compulsive disorder, okay? जब तक वो काम नहीं कर दिया उस वक्त तक स्कूल नहीं आएगा, जब तक ये जो इस लेवल पे नहीं पहुंचे, लेकिन वो अपने अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हैं, अपने गोल्स में यूटिलाइज कर लेते हैं। वो क्या ये जो गोल्स हैं ये मैंने अपने वो गोल्स की ऑब्सेशन रखती है, सुबह उठे तो वो ऑब्सेशन, और रात को सोने से पहले भी वो चीज सोच रहे हैं। इस तरह की ऑब्सेशन मुझे चाहिए, क्योंकि ये चैंपियंस में ही होती है। चैंपियंस होते हैं वो ऑब्सेस्ड होते हैं, ऑब्सेशन की वजह से उनको एथलीट जो बेस्ट है उनको फिजिकल वो फटीग नहीं होती है। दे फाइंड द वेज टू perform to their best potential on the day of the event as well. Okay, so this is not just कि मुझे चीज आ गई और मैंने जाके perform कर दिया. It never works like this. Never works like this. Okay, this is a total. This is a discipline that you'll have to
फॉलो, और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज डिफरेंट। मुझे पता है कि मुझे अगर बनना है कि क्रिकेटर बनना है तो मुझे वो वाला अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने जीआरई करना है और वो मैंने कैसे करना है ना, जीआरई की बुक में मुझे कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन सही तरीके से मिलती है ना, समझ नहीं आती शायद, लेकिन ये क्या मैंने क्या करना क्या है। अब अनफॉर्चुनेटली जब हम लोगों ने अपने जीमेट करने थे ना, हमारे पास वो चीजें नहीं, हम लोग कोशिश करते हमारी टीम के एक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें, लेकिन जब हम लोगों ने करना था ना, जब हम लोगों ने जब अपने जमानों में जब करना था जीमैट या जीआरई, उस वक्त हम लोगों को मसला ये हुआ था कि हमें बंदे ही नहीं मिल रहे थे, बंदे नहीं मिल रहे थे, बंदे थे ही नहीं उस वक्त, बंदे बहुत ज्यादा कम थे। आई थिंक 2-3 और लोग हैं जो करवा रहे हैं जीआरई, या फिर अच्छा करवा रहे हैं, मुझे बस अच्छा करवा रहे हैं, बुरा करवा रहे हैं, ठीक है करवा रहे होंगे, लेकिन उस वक्त नहीं था। इकोसिस्टम डेवलप हो रहे हैं, तो अब लोग हैं जो कि इन टेस्ट को समझते हैं, ठीक है। लेकिन मसला ये कि अभी भी काम है काफी, यानी कि मुझे एथलीट बने तो मुझे पता है कि मैंने किन लोगों के पास जाना है और मैंने क्या चीज फॉलो करनी है, अगर मैं नहीं भी जाना, लेकिन यहाँ पे मसला ये हो जाता है कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे अपने आप को डिसिप्लिन कैसे करना है, कॉन्सेप्चुअल मास्टरी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं डिसिप्लिन अपने आप को किस तरह का करना है, वो शायद चीजें मुझे नहीं मिलती, कौन सी जो चीजें हैं जिसको मुझे अपने आप को गार्ड करना है अगेंस्ट, ठीक है, कि मुझे ये चीज नहीं करनी और ये चीज करनी है, क्या करना है। अगर आप लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो मैं जस्ट एक और चीज भी मेंशन कर दूं, दैट विल बी इम्पोर्टेंट। मुझे इनफैक्ट मेरे इट्स ऑल माइंड, ठीक है, टोटली माइंड। स्टीफन हॉकिंस एक बंदा ऐसा जो हिल भी नहीं सकता था, वो चीजें वो करता है जो बाकी लोग भी नहीं कर सकते, टोटली बिकॉज ऑफ हिज माइंड, टोटल माइंड, ओके, इट्स ऑलवेज योर माइंड। दीज एप्स टारगेट योर माइंड एज वेल, ठीक है। और जो बाकी चीज भी होती है, ये वो सारा माइंड होता है, अगर मैं अपने माइंड को रिवाइड कर सकूं, इट विल बी अ डिफरेंट माइंड, लुक लाइक अ सेम पर्सन, डिफरेंट माइंड एंड टोटली डिफरेंट पर्सन, और चैंपियन एज वेल, probably champion as well. Makes sense or no? Different mind and totally different person. Totally different ceiling on your own goals. ठीक है, अपने आप से जो एक्सपेक्टेशन है वो भी कभी भी चेंज हो जाती हैं। नॉर्मली क्या होता है कि एक अपने आप से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और फिर ये होता है कि मैं इनफैक्ट आई एम एट द राइट प्लेस फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी के नहीं। जैसे अभी मेरी टीम मेंबर से बात हो रही थी, तो वहाँ पे ये होता है कि जो वेंचर कैपिटल, लोग वेंचर कैपिटल की तरफ जाएं कि ना जाएं, जो कैप्स कैपिटल है जहाँ पे उनसे हम लोग बात करें कि ना करें, क्या हम लोगों को होना चाहिए कि हम लोग वेंचर कैपिटल उठा के एक प्रोडक्ट बना सकें, और जो बाकी जो प्रोडक्ट्स कंपनी टीटीपी उनको हम लोग किसा करें, अगर कोई टफ टाइम दे, whenever you give a tough time to a company, two things happen: you get acquired by the same company, or you dominate them and you get more revenues. Okay, ये दो चीजें होती हैं, इसकी वजह से नॉर्मली ये बातें हमारी कल हो रही थी, तो उसमें भी हम लोगों का ये था कि आगे मैं बात क्या कर रहा था, मैं बात से निकल जाती है, बात एग्जैक्टली वो क्या थी इसमें, आज ने क्या लोग सब चुके हैं, लेकिन ये है कि मैं बात ही करना चाह रहा कि सपोज you will be a different person, okay, you'll be a totally different person if you follow the game plan, abide by the game plan, and just forget your past during this whole process. If you look at your past में अगर हम लोग देखते हैं ना, तो हम लोग we are never happy with our own selves, okay, तो हम लोग ना पास्ट वाले बंदे को हम लोगों ने रिवाइड कर, हम लोगों की चीजें शायद नहीं, but past really doesn't define the future. If I can have the new wiring in my brain, मेरी अपनी से expectation normally change हो जाती है। Normally जितने भी लोग होते हैं ऊपर पहुंचे होते हैं, वो एक वो बॉन्ड उस तरह नहीं होते, लेकिन चीज से गुजरते हैं, this is a test, kind of a test which has a global domination. Truly global test, in fact, not GRE, but GMAT truly global test होता है, लेकिन GRE भी has a certain level of global domination after 2010 as well. Okay, ये जो टेस्ट के पीछे जो लोग बैठे हैं, they are really smart people. If I don't know what kind of people they are, I'll not be able to tackle my enemy. Sun Tzu,
की भी बुक थी इस तरह की, उसने भी ये बात लिखी हुई है कि जो वॉर स्ट्रेटजी की सबसे बेस्ट बुक है, क्या आर्मी के जो लोग होते हैं उनके घरों में होती है बुक, कि जो कि उसने भी ये बात की थी, और कॉलिन पॉल की ये रिकमेंडेड बुक है, जो इनकी आर्म्स की इंटेलिजेंस की में वहाँ पे रिकमेंडेड कोर्स का हिस्सा होती है, द आर्ट ऑफ वॉर। उसमें भी यू नॉट बी एबल टू बीट द एनिमी, just impossible if you don't know your enemy's mind, what kind of a person he is. Once you get that person, you will be able to beat him. इसकी वजह से अगर हम लोग देखते हैं ना क्रिकेट में, अब ये बहुत ज्यादा होता है कि जो बॉलर्स हैं उनके एक्शंस को स्लो करके कोचेस उनको स्टडी करते हैं कि यार ये जो बॉलर है इसके जो एक्शन है ये किस तरह के हैं और ये किस तरह के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा काम होता है ताकि इस बॉलर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफाइन की जा सके, उन बॉलर को प्ले करने का जो बैट्समैन उसको तरीका आ सके। इट्स नॉट जस्ट बैट्समैन की इंट्यूशन पे वो करे, बल्कि साइंटिफिक जो मेथड है उसको फॉलो किया जाता है, जो स्ट्रेटेजी मेथड है वो फॉलो किया जाता है। ठीक है, आई होप दैट दीस थिंग्स आर मेकिंग सेंस, बिकॉज़ दीस आर थिंग्स दैट वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट अगेन, बट दीस आर द ओरिएंटेशन कि मुझे एग्जैक्टली किस तरह करना है इस जर्नी में और किस तरह उसको नहीं करना। ठीक है, अच्छा, अब सिचुएशन ये है, प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टिल नाउ प्लीज आस्क द क्वेश्चन, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन जस्ट टेक अ 2 मिनट्स ब्रेक, if you just have 2 minutes break, okay? अगर जो 2 minutes break is not just कि मैं अपना मोबाइल चेक कर लूँ, मोबाइल तो बैन है आप लोगों का, ठीक है? तो अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने ये करना है कि मैं राइट डाउन करूँ कि मैंने एग्जैक्टली क्या करना है। अब प्लीज टेक 5 मिनट कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है, मुझे अपनी क्या क्या चीजें चेंज करनी है, मुझे किस तरह से करना है, क्योंकि प्लीज दिस अगेन हार्श रियलिटी, हार्श रियलिटी, हार्श रियलिटी, harsh reality कि जो है harsh is not that hard but this is a good thing. Suppose हम लोग ना गांव के लोग थे, मेरे जो दादा थे वो बहुत ऐसे गांव में, गांव में भी वो जिम्मेदार लोग नहीं थे, वो बड़े गरीब लोग थे, जो मेरे अपनी जो फैमिली के जो मेरे दादा थे, ओके, उनकी फैमिली में ट्रेजेडी हुई, उनके जो पेरेंट्स, जो मेरे दादा के मदर ऑफ फादर, वो एकदम एक डेथ हुई, साइमल्टेनियस डेथ, 2 भाई थे, मेरे दादा बहुत छोटे थे और इनके भी एक छोटे भाई थे, ये लोग मतलब कि गरीब लोग थे, गांव में भी 2 बार का गांव है जो कि सियालकोट के साथ है, गरीब लोग, बहुत ही गरीब लोग थे, लेकिन वो एक सर्टेन क्राइसिस से गुजरे लाइफ में, देकर केम टू लाहौर, यहाँ पे आके उन्होंने काम शाम करना स्टार्ट किया 1960s में। ये जो हमारा घर है काफी बड़ा घर है, ये इसके 26 बेडरूम्स है इसमें, ठीक है, ये काफी ज्यादा पोर्शन है इसमें, कंबाइंड फैमिली है, लेकिन बट आई वांट टू से कि ये जो घर था ये प्रॉपर्टी थी सैयद बाबर अली के, जो पैकेजेस के ऑनर्स हैं, लम्स के भी जो ऑनर्स हैं, ठीक है, सैयद बाबर अली थी, मेरे दादा ने उनसे परचेज की थी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी 1960s में। आई वांट टू से कि वो गरीब बंदा जिसके पेरेंट्स जो है वो फौत हो गए, वो यतीम बंदा लाहौर में आया और वो बहुत ज्यादा उसने यहाँ पे एक वो टोटली उस बहुत ही सेल्फ मेड बनते थे, ठीक है, वरना अगर वो क्राइसिस ना होता तो आज हम भी गांव में होते, ठीक है ना, हम लोग भी गांव में आज सलाब में किसी वजह सलाब में बह चुके होते शायद, ठीक है, और नाम और निशान मिट चुका था, अल्लाह माफ करे, लेकिन ये व्हाट आई वांट टू से इज के क्राइसिस नेवर अ बैड थिंग, what kind of a person you always had been really isn't that crisis वाली situation थी, but now in every bad situation there is always an opportunity, always an opportunity, okay? तो again अगर आप लोग देखें जो best minds होते हैं, they seek for the difficulties and for the crisis because crisis grow करती हैं आपको। I hope कि यहाँ भी जो जो होगी situation grow करें, just take 5 minutes और इसको देखो कि what kind of a person I want to be, what I have my expectations, मेरी अपने से expectation कुछ भी नहीं होती, but the people who have expectation from me, just like your mother, okay, उनको कितना ज़्यादा expectation है तुमसे, ठीक है, तो मुझे जिन लोगों जो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, if I get a good score तो कितना ज्यादा जबरदस्त हो जाएगा। और अब सिचुएशन क्या हो जाती है, सिचुएशन क्या चीज हो जाती है, विल बी एबल टू एस दिस टेस्ट और एनी डिफिकल्टी फॉर दैट मैटर, दिस टेस्ट मोर सो बिकॉज ऑफ जस्ट 2 things, just because of 2 things you'll be able to get a really good score and you'll be एक्सट्रापोलेशन भी इसकी हो जाती है हर किसी भी चीज की लाइफ में, दिस इज आल्सो अ प्रोसेस दैट यू हैव टू गो थ्रू, जस्ट 2 थिंग्स यू नीड, जस्ट 2 थिंग्स, फिलहाल मुझे कहते हैं जब हर एक बंदे की 2 चीजें देखें, एक के उसमें वो इनफैक्ट वो कितना मोटिवेटेड है, उसमें कैपेबिलिटी कितनी है, कैपेबिलिटी नॉट पॉसिबल कि नेचर ने मुझे कम कैपेबल बनाया हो,
अच्छा, हम लोग वैसे बड़ा इंकरेज करते हैं घर ऑनलाइन ही ले, क्योंकि यकीन करोगे ऑनलाइन सेशन इस तरह दिए हुए हैं कि जहाँ पे सोए हुए हैं वहाँ पे उधर ही लैपटॉप करके ऊपर बनाने के बाद जोक सुनाते हैं कि यू गाइस हैव टू कम टू द मीटिंग। जो आप लोग जूम कॉल पे जो आप लोग कपड़े पहनते थे, और सारे वो लोग आगे ऊपर टाई थी और नीचे जो थे वो वो थे शॉर्ट्स थे। अच्छा, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ऑनलाइन भी हो जाती हैं चीजें जो पूरी किस्म की। अच्छा, so what I want to say is कि only two things, just two things, और इसका मैंने अभी भी देखना है, इसको मैंने बार बार देखते रहना है, बार बार देखते रहना है इस जर्नी में, ओके, बार बार मैं देखते रहना है, and I can write those two things, just two things, you will be able to get any goal in your life, and also you'll be able to get a really good score. If you are, if you have the capability which every single person in this universe is, एवरी सिंगल पर्सन, ओके। वो अलग बात है कि मेरे पेरेंट्स मुझे क्या कहते थे आज तक, यार तुम डिसीजन नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वो छोड़ते हैं, ओके, वो एक दूसरी वजह से कहते थे बिकॉज दे वर प्रोटेक्टेड, ठीक है। लेकिन वो चीजें मेरे माइंड में इंग्रेन नहीं होनी चाहिए कि मैं कुछ कर नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। नॉर्मल सोसाइटी ने इंग्रेन की होती है, ठीक है, वो जो बैरियर्स लगाती होते हैं। एक कैपेबिलिटी, यू गाइस आर 100%, एवरी पर्सन इन दिस यूनिवर्स इज केपेबल। इसलिए बोला आगे कहते हैं जो भी बंदा हायर करना है कि जो केपेबल तो हर कोई होता है, उसकी दूसरी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो होती है मोटिवेशन। Are you motivated enough, or are you totally satisfied with your present? For instance, Bilal is also my brother, and we are also partners. Bilal is not satisfied with his present. Not satisfied with his present, okay, not satisfied with his present. क्या किस तरह प्रेजेंट है, शुक्र तो करते रहना चाहिए आपको, बट जो टारगेट्स हैं वो क्या है अपने, वो जो टारगेट्स हैं वो आप हाई रखते हो, आपको मोटिवेशन उस लिहाज से आ जाती है। if you don't have any enemy in your life, please make some enemies. Enemies motivate you. हम लोग जब देखते हैं ना, अगर हम लोगों का आ जाता है मैंगो बाज में या फिर हेलो में, जो हमारी पीआर की टीम में करते हो, किसी ने नीचे नेशनल कमेंट किया होता है, वो बड़ा मजा आता है हम लोगों को, क्योंकि वो एक मोटिवेशन बड़ी जबरदस्त हो जाती है, जो हम लोग नॉर्मली नो होती है, हम लोग कंटेंट हो जाते हैं, ओके। बड़ा एक अच्छा लगता है एक एनिमीज को देख के, ओके, बिकॉज आई लाइक एनिमीज, आई लाइक एनिमीज। You want to fight with me? Bring it on. Bring it on. Okay? Bring it on. Challenge जो है, they will bring the best out of you. Enemies will bring. Will bring. Okay? Enemies जो है वो ही आपको आपका जो बेस्ट जो निकालेंगे। हम लोगों की लाइफ के कभी कभी हम लोगों ने बेस्ट एक्सप्लोर ही नहीं किया होता अपना, क्योंकि कभी कभी हम लोगों का जो एनिमी होता है वो इतना हमें मिला नहीं होता, ठीक है, जिसने हमें किया, या फिर हम लोगों ने अपने आप को ये एक्सेप्ट किया होता है कि आई एम अ लूजर इन एवरी सर्कमस्टेंस, एनिमीज होंगे वो मुझसे जीत जाएंगे और आई कैन नॉट विन एनीथिंग इन माय लाइफ, ओके। ये अगेन दिस इज समथिंग जो मेरे अंदर शुरू में तो नहीं थी, ये फिर कहाँ से आ गई, जो सोसाइटी ने की होती है, लेकिन सब कुछ भूलना होगा मुझे टोटली। अगर आप लोग देखते हो ना, जो सक्सेस स्टोरीज भी होती हैं, वो नॉर्मली वो लोग होते हैं जो कि मिड वे में कहीं दोबारा से चेंज हो जाते हैं, कि एक चीज होती है मिड लाइफ क्राइसिस, या फिर आपको ऊपर लेके चली जाती है या फिर आपको नीचे लेके जाती है, ओके। जस्ट 5 मिनट्स की ब्रेक हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टेक केयर।
Okay, tomorrow we'll be doing a reading comprehension passage. लेकिन ये है कि but I think we are left with 45 minutes. I think we can do a passage as well. ठीक है? Send this recording by email to me as I have with dengue and I have very hard for me to consider it severe as with the wrong to consider and I'm unable to unfortunately. Okay. Okay. So जो test का pattern है वो हम लोग देखते हैं वो किस तरह का होता है. Just you guys can view my screen, right? टेस्ट डे में जब मैं जाके बैठता हूँ, the first section is called an issue essay. Issue essay. Okay, this is an issue essay. Issue essay जो है वो फर्स्ट ऐसे होता है जो मैंने लिखना होता है. ठीक है, इट इज पेपर पैटर्न इज के यहाँ पे दिस इज 30 minutes and you'll have to write an essay and the essay is going to be 450 to 500 words long. Okay, जितना ये बड़ा लेंथी ऐसे हो जाता है उतना ही अच्छा हो जाता है. लेंथ यहाँ पे मैटर करती है. एक छोटा ऐसे बहुत अच्छा है इसके तो बड़ा ऐसे का फायदा हो जाता है. essay is this is the first essay and this is section 1 minute break which is optional but you have to take 100% this breaks you have to take. Okay, जो माइंड है उसको रेस्ट हो जाता है वो बहुत जबरदस्त तरीके से कर सकता है. और जो स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स होती हैं हम लोग उनके बारे में बात करेंगे अबाउट दिस strategic break जो हम लोगों ने जर्नी में उसको देखनी होती है. Okay, 1 minute break and then you have the second section. This is called an argument essay.
in 30 minutes और ये सारी चीजें हो जाती हैं. Okay, this is the essay part. जो GRE हमारा बेसिकली आता है वो होता है 340 में, उसका टोटल स्कोर होता है, और उसमें होता है 170 मैथ्स का स्कोर, 170 टोटल इंग्लिश का स्कोर होता है. ओके, मैथ्स को मैं कहूँगा क्वांटिटेटिव का, और वर्बल जो है वो इंग्लिश में कहूँगा. ठीक है, ओके. सो अब सिचुएशन ये है कि जो 170 पॉइंट है, 170 वर्बल, इसमें you have the minimum that you can get is 130. Even if you write nothing is 130 and 130. Okay, so there is a difference of 40 marks. 40 marks a difference. Okay, you please write it down. 40 marks difference. You note it down. जब कुछ समझना है वैसे समझना, no problem. अब 40 marks, and in the quant section you have two quant जो होते हैं यहाँ पे, जो maths होते हैं उसके you have two sections. एक quant section 1 होता है और एक quant section 2 होता है. First, in any quant section, that is section 1 of quant to section 2 of quant, you have 20 questions each. 20 questions each. 20 questions each. Okay, but this is not a linear correspondence. That is 40 वहाँ पे जो gap था वो है, और 40 टोटल क्वेश्चन हो गए. इट मींस कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क नहीं, इस तरह ऑपरेट नहीं करता, ये थोड़ा सा डिफरेंटली ऑपरेट करता है. हम इसको आगे जाके देखेंगे. ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चंस फर्स्ट सेक्शन में होंगे, 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो सेकंड सेक्शन में होंगे मैथ्स में. अभी चीजें ऑर्गेनाइज कैसे होती हैं, सेम गोस फॉर द वर्बल 20 क्वेश्चंस, एंड द टाइम पीरियड टू सॉल्व दिस 20 क्वेश्चंस फॉर द मैथ्स इज 35 मिनट्स. 35 मिनट्स ईच सेक्शन. ओके, ऑर्गेनाइज इस तरह होता है, ये इस तरीके से होता है कि essay 1, essay 2, this is an issue essay, this is an argument essay, 30 minutes, 1 minute break, 30 minutes, and then it is going to be quant section or the verbal section that you don't know beforehand. ये मुझे नहीं पता होता कि ये quant section आएगा कि ये verbal section आएगा. ठीक है, इसको ये जो essay का स्कोर होता है, it is not contributed towards your 340 वाला स्कोर. उसमें ये मार्क नहीं होता, ये सेपरेटली मार्क होता है, ये आउट ऑफ 6 मार्क किया जाता है. ओके, जो इम्पोर्टेंट स्कोर है वो 340 वाला स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट स्कोर होता है. ठीक है, 340 आउट ऑफ 340. अगर आपने किसी को कहा ना क्या मेरा 340 स्कोर था, परफेक्ट स्कोर था मेरा GRE में, ही विल नेवर आस्क यू कि तुम्हारा ऐसे नहीं जा सकता. ओके, बट अगर मेरा ऐसे का स्कोर परफेक्ट था, 6 और 6 था, और यहाँ पे मेरा 330 था, this is good, but this is not as impressive as 340 or 340. क्योंकि ऐसे में मेरा 4 या 3 भी आ जाए तो कहने का मतलब है कि स्कोर की सिग्निफिकेंस क्या होती है ऐसे की. PhDs में नॉर्मली जो होते हैं एसेस की थोड़ी सी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है, क्योंकि PhD में यू हैव टू राइट थीसिस. ओके, लेकिन अगर ये बहुत पर्सनल डिसीजन होती है, बहुत स्ट्रेटेजिक डिसीजन होती है, ये डिसीजन मेरी नहीं. ओके, ना मैं इसको एस्पाउस करता हूँ, ये बिलाल की है, बिकॉज बिलाल इज आई थिंक अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन. बिलाल सेज I don't endorse this point of view, by the way. Okay, लेकिन इस point of view में बिलाल बड़े effective होते हैं. बिलाल कहते हैं कि if you're not applying for the PhD and if you have struggled in your mocks with the time situation, कि आखिरी वक्त में जाकर मैं बहुत exhaust हो जाता हूँ. ये पैटर्न ये जो consistent है मेरा पैटर्न, मैंने 4 to 5 मॉक्स लिए, 4 घंटे के फुल लेंथ मॉक्स लिए, मैंने एसेस भी उसमें लिख दिया. मैं देखा कि मेरा आखिरी वक्त में जाके टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टेस्ट मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाता. बिलाल ये कहते हैं, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता. बिलाल कहते हैं कि leave the essay and start your GRE from the 3rd section. उसका रीजन ये है कि you will be approaching quant or verbal section from a totally different freshness of mind. It effectively then becomes a 3 hours test. मैं इसको endorse नहीं करता इस point of view. ठीक है, ये जाके हर किसी ने ये नहीं करने लग जाना कैसे करना, हम लोग ऐसे यहाँ पे करते हैं, हमारा emphasis बहुत ज़्यादा होता है. But somehow you are constantly being exhausted, and it's a pattern that is repeated every single time. आखिर में जाके मैं इतना एग्जॉस्ट हो जाता हूँ कि मैं रिपीटेड मिस्टेक्स कर रहा हूँ. उसकी वजह से मेरा 340 वाला जो मार्क है वो मेरा इफेक्ट हो रहा है. मच बेटर मैं उसको सेव करूं एज कंपेयर टू मैं एसे के ऊपर मैं अपनी ज्यादा एनर्जी उस वक्त लगा रहा हूं जब मैं बहुत ज्यादा फ्रेश हूं.
बहुत ज़्यादा fresh हूँ. And if you look and ask the program coordinators of the program that you are asking, they will say कि as we are not that much concerned with the essay score. But ऐसे somehow हम लोग फिर भी करते हैं. ये इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ऐसे नहीं करते. ऐसे हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करते हैं. ऐसे मतलब बहुत ज़बरदस्त होता है. ऐसे मुश्किल होता भी नहीं. But I am talking about the possibility in which you have to make a very crucial decision in your life. Okay, just like getting rid of someone and divorce किसी को करना वो भी important decision होता है. लेकिन उसमें भी हम लोग ये देखते हैं कि अपनी लाइफ को स्कूल में बनाना है या फिर एक आपने टॉर्चर में रहना है. ठीक है ना. तो उसकी वजह से आप कहते हो कि यार मुझे लाइफ स्कूल में चाहिए, मुझे टॉर्चर में चाहिए. So आप but I want to say these are the decisions in which you gain something and you let go something. Okay, so in the same situation, okay, you want to get a good score in a 340 or 340 situation. This is the target कि वो वाला स्कोर मेरा अच्छे तरीके से ना हो. Okay, लेकिन ऐसे जो होता है वो इतना मुश्किल नहीं होता. After the essay we have a quant section or we have a verbal section. If it is a quant, then you have 20 questions in 35 minutes. If verbal, you have 20 questions but 30 minutes. 30 minutes. Okay, कोई भी section पे आता है. If quant, then this is going to be verbal, then quant, then verbal, and then you have another section which can either be quant or it can either be verbal. This can be quant or this can be verbal. If this is verbal, it means that one out of these three sections was experimental. Which section actually was experimental, I don't know beforehand. मुझे नहीं पता कि आखिरी जो section था वो experimental था. Experimental section is not counted towards your overall score. वो just ये डाटा अपने पास रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो questions आते हैं उन questions को पहले experiment किया जाता है live subjects में. Live subjects आप लोग होते हैं. ठीक है, ताकि उनको पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन है किसी स्पेसिफिक डेमोग्राफिक को या फिर ज्योग्राफी को ये फेवर तो नहीं कर रहा है. ये तो नहीं है कि अमेरिकन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन इंडियंस बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उस क्वेश्चन को फिर उनको ज़ाया कर देते हैं लोग. ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन पे एक अच्छा स्कोर मिलते हैं और फिर उनको पता चलता है और फिर ये भी पता चलता है कि इसकी कैटेगराइजेशन क्या है, इसकी डिफिकल्ट क्वेश्चन है या फिर ये इजी क्वेश्चन है या फिर ये मीडियम क्वेश्चन का. सो जो एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन होते हैं ये मार्क नहीं किए जाते बट दे you don't know beforehand कि कौन सा था. It goes both way. अगर verbal का section first आ जाता है, then it's going to be quant, then it's going to be verbal, and then it's going to be quant and then verbal quant. You don't know. Okay. After the third section, that is here, you will have 8 minutes break. 8 minutes break. Of course, I'll have to take it ताकि मैं बहुत ज़्यादा refresh हो जाऊँ. ठीक है, ये मैंने लेनी होती है. अच्छा, और सेकंड ये कि of course it's a mind oriented test. I'll have to be on the peak of my mind. किस तरह चीजें होती हैं जो हम लोग यहाँ पे थोड़े से हैक्स देखें जो वर्क फॉर अस एंड अगर हम लोग किसी को रिकमेंड करते हैं तो वो भी करते हैं तो दे आल्सो टेल कि इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले थे. तुम लोगों ने देखी मोहब्बतें एक मूवी थी अमिताभ बच्चन की, नहीं देखी किसी ने? अमिताभ बच्चन की मोहब्बतें में शाहरुख खान भी था उसमें. मोहब्बतें यार नहीं. अच्छा, उसमें ये था कि जो अमिताभ बच्चन था ना वो इनफैक्ट सन गेजिंग करता था. ठीक है, सूरज यात्रा उसको कहते हैं ये लोग. ठीक है ना, उससे क्या होता है कि जो आपका ये वाला पार्ट होता है ना ब्रेन का वो बहुत रिफ्रेश हो जाता है और आपको बहुत एनर्जी महसूस होती है इस वाले पार्ट में. ठीक है, जो सामने जो इसका वर्टिबल कॉर्टेक्स आई थिंक इसको कहते हैं. ठीक है ना, ये आप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. ओके, तो ये जो है ये आपका बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है. तो ट्राई टू मेक हैबिट. अगर आप लोग देखते हैं ना अक्षय कुमार को भी, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो गांव के लोग हैं, हम लोग तो इंडियन मूवीज बहुत ज़्यादा देखते हैं. ठीक है, लेकिन अक्षय कुमार इनफैक्ट बहुत एनर्जेटिक रहता है. तो वो ये कहते हैं कि मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जहाँ मैंने सन गेजिंग ना की. ठीक है, सन गेजिंग गुड फॉर आईज एज वेल दैट यू डोंट सी थ्रू योर आईज, यू सी थ्रू योर माइंड. आईज अगर फ्रेश होती है तो माइंड भी फ्रेश होता है और ये बड़े मल्टीपल वे में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देता है ये. ठीक है, सन सुबह का जो सन होता है वो बहुत एक एनर्जी ओरिएंटेड होता है, जो दोपहर का सन होता है वो हीट ओरिएंटेड होता है. ठीक है, बट आई वांट टू से कि मैं अपनी ऑन द टॉप ऑफ द गेम, तो मुझे इन चीज़ों में भी ट्रेड है. डाइट इज इंपॉर्टेंट. ट्राई टू कट डाउन द शुगर. आमंड्स, अगर मैं 7 आमंड्स, इट्स नॉट जस्ट अ मैथ. 7 आमंड्स अगर मैं उनको डिप करूँ वाटर में सुबह अगर मैं करूँ, टोटली डिफरेंट मेंटल लेवल, टोटली डिफरेंट होता है. अगर एक होता है
टैक्सी ऑयल, ओके, कलवंजी का तेल, अगर मैं अपने नॉस्ट्रल्स में लगा देता हूँ, मुझे लगता है कि मेरी जो ब्रीदिंग है वो इतनी जबरदस्त हो गई है कि मुझे फील हो रहा होता है, ओके। सो दीज आर द थिंग माइंड गेम। अगर मैं अपने टॉप ऑफ द गेम में रहूंगा, मैं परफॉर्म नहीं कर सकूंगा, अपने माइंड में परफॉर्म कर सकूंगा, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने थोड़ी सी रखनी है अगर हम लोग अपना इसको करना चाहते हैं। ये जो वर्बल क्वांट इस तरीके से ऑपरेट करता है, जैसे से ओके, दिस इज द सेकंड पार्ट के, ये जो पेपर पैटर्न है ये किस तरीके से ऑपरेट करता है। हम लोगों ने देखा कि जो साइकोलॉजिकल पार्ट है वो किस तरीके से ऑपरेट करता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, इसमें जो आंसर चॉइसेस, इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस भी बहुत ज्यादा हमें सिखाती हैं। हम लोगों ने जब चीजों को करना है, we will never select the correct answer for the verbal part actually, okay. We will eliminate the incorrect answers. Incorrect answers have specific pattern as well. Once you start eliminating incorrect answers and you know the reason why this is incorrect, you will see that बाद में वो चीजें फिर से आगे आ रही हैं. And once you have the pattern, then things are easily manageable. Even if it is एक चीज होती है स्ट्रक्चर्ड डाटा, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ओके। जो डाटा एनालिटिक्स है वो भी स्ट्रक्चर्ड डाटा से डील करते हैं। इतना सारा डाटा लेकिन सारा स्ट्रक्चर होके आ जाता है, उसको कॉम्प्रिहेंड करना इजी हो जाता है, उसकी मेक सेंस करना, ओके। तो अगर इसको भी इस तरीके से देखें कि जहां पे अगर हम लोगों ने इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस के देखे कि वहां पे ये इनकरेक्ट क्यों है, क्यों, और हम लोगों ने लिखा है, साथ साथ हम लोग लिखते गए, ठीक है, तो हम लोगों को पैटर्न्स नजर आ जाएंगे साथ साथ लिखते गए। इसका मतलब ये है कि you will be taking notes as well, not during the lecture is perfectly fine, but once you are doing the practice, you will be making the notes alongside. These notes are more important as compared to just solving one question or often another question. Page solving, as I used to do in my other exams, is not that good approach. Page solving is just a false sense of security. The insights you get कि यार ये question incorrect क्यों था, ये incorrect क्यों था, insights are really important. So take your time, even if 1 hour you have just solved 4 to 5 questions, but you have a lot of insights. Insights are important. The best thing is you can get the insights even if you get the answer wrong. But don't rush to the answers and explanations. फिर हमारी किसी स्टूडेंट से बात हुई, तुमको कहा गया वीडियोस देखने के बाद तो वीडियोस कब की देखी है, पहले से नहीं देखी। Don't do this. Don't rush. Go really slow. Once you are watching the videos, just slow down and write down the things on your own. You will see that once you start writing, then you will have ये बंद कर देते हैं फिर आप, क्योंकि ऐसे चल रहे हैं perfectly fine. अच्छा, once you start writing, you will see that you will have the clarity of thoughts. You will get the best wisdom of your own self. हम लोग अपना जो best wisdom है ना, we cannot get at times we cannot get the grasp of our own best wisdom. Okay, हम लोगों का अपना जो best wisdom है उसमें हम लोगों का grasp नहीं आ रहा होता है. Only 2 ways आपका best wisdom पे grasp आ जाता है. One is once you are talking to some person and that person is attentive enough to listen you. And just because of sheer speaking, you can get your own answers. In fact, अगर आपको कोई बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं ना, आपसे बात कर रहा होता है, तो वो इनफैक्ट उसको खुद उसके आंसर्स मिल जाते हैं नॉर्मली, लेकिन हम लोग एक सही तरीके से उसको सुन ही नहीं, राइट। उसको नॉर्मली चर्चिल का भी इस तरह था, चर्चिल एक दफा रात को अपने दोस्त पास गया और उसने इनफैक्ट उसके काफी ज्यादा बातें की और उसने सिर्फ उसको सुना, उसका चर्चिल का अपना याद है, तो उसने याद है मुझे आई न्यू एवरी आंसर बस बिकॉज कि मुझे एक अटेंटिव एक बंदा सुन रहा था। एक ये चीज होती है, you get the best vision of your own self this way. The second, if you don't have any person, what you do, you just write it down. वो कौन सी राइटर थी जर्मनी की, जो कि छोटी सी लड़की थी, वो जल्दी मर भी गई थी, लेकिन उसका बहुत ज्यादा था इम्पैक्ट, किसी को पता है उसका? यस उसका वो भी क्या थी, वो एक ऐसी दूसरी थी, वो लिखती थी, राइट। सो जो प्रोसेस ऑफ राइटिंग, वो जर्नलिंग क्यों कहा जाता है जर्नलिंग? जर्नलिंग इज समथिंग दैट यू गेट द बेस्ट विजडम ऑफ योर ओन सेल्फ, राइटिंग। इनफैक्ट सो इंपॉर्टेंट कि अगर आप वहां पे देख रहे हैं ना, वो जो इतना बड़ा ऊपर हुआ है, वो टोटली जर्नलिंग के लिए, वो तो टोटल थॉट प्रोसेस को लाइन करने के लिए।
जो हम लोगों के टीम मेंबर्स यूज करते हैं, क्या किस तरह में आ जाए कि हम लोग उसको देख सकें और पूरे पर्सपेक्टिव में चीजों को नजर आ सकें. ओके, जर्नलिंग, मैपिंग, काइंड ऑफ अ मैप्स दैट जो ओनली यू अंडरस्टैंड, नोबडी एल्स अंडरस्टैंड्स. ओके, तो यहाँ पे भी वंस यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, बी लिबरल with just jotting down your insights. These are gold mines. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है. और फिर अगर मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया उसके साथ मैं स्टेपल करता हूँ. These are the kind of notes which are थोड़े से different as compared to other notes that I use today. And there's no concept of rough work in this journey. The things that you got wrong, even they are important. You can highlight them and write down your insights. Once you write down your insights, you will amaze that it's almost impossible to get the similar question incorrect in the future. In writing that down, you will able to see what was the reason I got wrong. मुझे concept से problem थी, concept से problem, you'll be able to identifying the problem is half the solution. ठीक है, ये हम लोगों ने इस तरीके से लेके चलना है, और जो हम लोगों ने अपनी जो लॉजिस्टिक्स हैं वो किसी से अलाइन करते हैं. ओके, दैट्स इट. आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ. वी आर जस्ट लेफ्ट विद 20 minutes, but ये भी आई थिंक मोर देन इनफ. एनी क्वेश्चन दैट यू गाइस वांट टू आस्क, प्लीज फील फ्री. You said that we can skip the essay part in the beginning. I don't say, Bilal says. Okay, that. But like once we're done with 340 part, can we like go No, back? you cannot go back. You can. Okay, this is an important question. Section, जो GREs हैं, they are once you're in the section, within the section you can go to and fro. Right. Okay, लेकिन after the section is over, you're gonna go back to that section. Okay, so अब सिचुएशन ये है कि एसेस को हम लोग करेंगे आगे जाके, बिकॉज ऐसे इशू ऐसे है सम कॉरेस्पॉन्डेंस विद द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. इसमें आप लोगों को कुछ वॉइस नोट्स भी शेयर करेंगे आप लोगों के ग्रुप में. अली रजा, वो वॉइस नोट्स चाहिए कि वोकैबुलरी का गेम प्लान क्या होना चाहिए, मुझे एग्जैक्टली वो किस तरह करना है, मुझे जो जब हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जो आर्टिकल्स आप लोगों ने रीड करने हैं वो एग्जैक्टली हम लोगों ने किस तरह करने हैं. तो वो सारी चीजें आप लोगों के वॉइस नोट एक छोटा सा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, उसको आप लोगों ने गेम प्लान को फॉलो करना है. प्लीज गो डाउन, आज वापस जाके जिन चीजों को दोबारा से प्लीज करना है, जस्ट एन ओरिएंटेशन के एग्जैक्टली हम लोग किस तरह से करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मेरी अपनी एक्सपेक्टेशंस मेरे आपसे क्या है, मैं अपनी लाइफ में सेक्रीफाइसेस कर सकता हूँ बाकी चीज़ों की जिसकी वजह से मेरा इसका स्कोर अच्छा आ जाए, बस आई हैव अ गुड स्कोर. तो देख लो कि स्कोर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है. स्कोर 5 years तक वैलिड रहता है. स्कोर की इंपॉर्टेंस फॉर एनी काइंड ऑफ a financial aid is important. If you can get a kind of a score, जिस तरह 3 तरह की फाइनेंशियल एड मिल जाती है. एक होती है GA-शिप, एक होती है ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप. ओके, वो ज़्यादा क्लैरिकल वर्क होता है. इवन इफ यू डोंट, नॉर्मली उन लोगों को मिल जाती है GA-शिप मास्टर्स के लिए जिनका GPA इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन अगर उनका GRE का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल हॉर्स पावर उनकी शो हो जाती है, तो प्रोफेसर उनको उन काम के लिए भी रख लेते हैं. ग्रेजुएट असिस्टेंट स्टाइपेंड ओरिएंटेड होती है. मास्टर्स को यूएस से फंड करना एट द टाइम ऑफ एडमिशंस, मास्टर्स में मुझे फंडिंग नहीं मिलती एट द टाइम ऑफ एन एडमिशन, लेकिन वंस आई एम इन द स्कूल तो मुझे ये आरिश ये GA मिल सकती है चीजें. ठीक है, अगर मेरा GPA कम है तो ऑफकोर्स मुझे RA नहीं मिलेगी और मुझे TA भी शायद ना मिले फिर. ठीक है, लेकिन मुझे GA तो मिल ही सकती है क्योंकि GA जो क्लैरिकल वर्क होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ वर्क होता है. ठीक है, तो मुझे ये थोड़ा सा देखना है. गारंटी मिल जाएगी तो गारंटी कोई चीज़ नहीं होती. गारंटी नहीं होता कि कोई भी चीज़ मिलेगी, लेकिन हम लोग चांसेस इंक्रीज करते हैं. ठीक है, दूसरा ये कि जो एडमिशंस हैं, आई होप कि आप लोगों की लिंक्डइन की जो प्रोफाइल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू गेट इनटू परफेक्ट पर्टिकुलर स्कूल. यू डोंट वांट टू बी इन अ सिचुएशन कि अब आप पहुंच के हो स्कूल में और आपको पता चले यार ये चीज़ आप करना ही नहीं चाहते थे अपनी लाइफ में. ओके, और जो रिसर्च होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. रिसर्च इज नॉट, स्मार्ट पीपल ऑलवेज लुक एट थिंग्स डिफरेंटली. ओके, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ गूगल की सर्च नहीं होती, जो सर्च है टॉकिंग टू द राइट पीपल एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, जो हम लोग हमेशा बात करते हैं लिंक्डइन की प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि लिंक्डइन में मेरा एक अच्छा स्कोर भी मेंशन हो जाए और प्रोफाइल एक अच्छी अच्छी रिकमेंडेशन मुझे लिंक्डइन में भी हो, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग दिया जाएगा. बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ प्रोफाइल्स ऑन द लिंक्डइन व्हिच आर वेरी बैड प्रोफाइल्स. ओके, फेक प्रोफाइल्स हर जगह प्लेटफॉर्म में होती है, लिंक्डइन में भी है. व्हाई वुड एनीबॉडी आंसर टू अ नॉन सीरियस प्रोफाइल
बड़ी प्रोफेशनल प्रोफाइल अगर हम लोग बना के अगर स्टूडेंट्स को अप्रोच करें, करंट स्टूडेंट्स को, दे कैन गिव द इनसाइट्स क्या एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है. बेस्ट पीपल एज वी ऑलवेज से कि बेस्ट पीपल टू let you know about the insiders knowledge about a particular program are the current student. They are also always they want to help people out. Okay, वो लोगों को help करना भी चाह रहे हैं because few years 1 or 2 years they were in your situation and don't know कि क्या करना है लाइफ के साथ. एलुमनाई जो होते हैं अपडेटेड नॉर्मली नहीं होते ना, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनकी लाइफ में दूसरी चीज़ें आ चुकी होती हैं. ओके, ये एलुमनाई जो स्टूडेंट्स हैं, करंट स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़बरदस्त एसिड होता है. उनको अप्रोच करने का तरीका होता है. अगर लिंक्डइन प्रोफाइल मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और बहुत अच्छे लोग उसमें अटैच हो तो नॉर्मली वो उसमें आ जाता है लिंक्डइन में. क्या म्यूचुअल कॉन्टेक्ट्स जो होते हैं वो बड़े बेनिफिशियल हो जाते हैं. नॉर्मली वो हेल्प नहीं करते जस्ट बिकॉज कि म्यूचुअल कॉन्टेक्ट और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि दिस पर्सन हु इज इन माय सर्कल. ठीक है, लोगों को अटैच करना स्टार्ट किया हम लोग 2019 में. यहाँ पे 2019 में बैंक ऑफ पंजाब ने अपने एम्प्लॉइज को एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए फंड करना स्टार्ट कर दिया था. उस समय हमारे पास कुछ एग्जीक्यूटिव्स आए थे बैंक ऑफ पंजाब के, तो उनका ये सिचुएशन था कि वो काफी सीनियर पोस्ट में थे, क्योंकि वो बैंक ऑफ पंजाब नाम का एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए उन पर कर रहा था. तो उनमें से एक बंदा था, उसका नाम है सलमान शाह. उसका हॉबी क्या था एग्जीक्यूटिव एमबीए. उसने मुझे कहा था कि यार मेरा जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है ना उसमें बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग है बैंक ऑफ पंजाब, और आपको कहते थे कि काफी अच्छी पोस्ट में था, वीपी की पोस्ट में था. He was used to say कि I was ATM of Bank of Punjab, I'm money making person of Bank of Punjab, a really important person. तो उसका ये होता था कि उसकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल कहता था, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल में हर बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो एडिट है, हर बैंक का प्रेसिडेंट. तो वो स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल. तभी मेरी किसी और से बात हो रही थी, एक असिस्टेंट कमिश्नर हैं इसके इनकम टैक्स ग्रुप के, तो उनसे बात ये होती है कि उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल एस्टैब्लिश नहीं थी. तो वो जॉन हॉपकिंस में जाना चाहते थे. सीएसए के जो लोग होते हैं उनकी जो फाइनल डेस्टिनेशन होती है वो होती है, सॉरी जॉन हॉपकिंस ने कैनेडी जो स्कूल ऑफ लॉ है हार्वर्ड का, उसमें पब्लिक पॉलिसी के लिए. तो ये सिचुएशन थी. तो प्रोफाइल जो लिंक्डइन की है वो मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी. ओके, उसके ऊपर मैं काम करना स्टार्ट करूँ. कहा कि मेरी एक बिलाल करके मेंशन करे थे कि नॉर्मली बिजनेस स्कूल्स में तो आपके 30% ऑफ द चांसेस होते हैं कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल करके देखते हैं, नॉर्मली देखते हैं. सोशल मीडिया की प्रेजेंस सबसे इंपॉर्टेंट लिंक्डइन की होती है. बाकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी इंपॉर्टेंट होती है आपकी, लेकिन लिंक्डइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. बाकी तो आप कर सकते हैं हाइड, लेकिन लिंक्डइन वो हाइड नहीं की जाती. ओके, लेकिन इसमें हम लोग उसको रखें और उसको एक बेस्ट प्रैक्टिसेस उसको बनाया जाए. अचीवमेंट्स इंपॉर्टेंट, रिकमेंडेशंस आर इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें, और कोच ताकि मैं स्ट्रेटेजिकली कर सकूँ. बिकॉज GRE इज नॉट अ गोल इज टू गेट इनटू अ स्पेसिफिक स्कूल, बट GRE इज इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए आप हमारे साथ आए हैं, और ये हमारी थोड़ा सा उसमें हम लोग देखेंगे. और लेकिन सच में एनी क्वेश्चन, जस्ट आई एम गोइंग टू एंड द सेशन. नो क्वेश्चन. परफेक्ट परफेक्ट. पापा मटेरियल सारा हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे. ठीक है, पॉसिबल कि अगर आप लोग कोई चीज़ देख रहे हो, अगर आप लोगों ने कोई चीज़ डिस्कस करनी हो, यू विल बी आस्किंग द क्वेश्चंस. एक आप लोगों को प्रोफाइल बनानी पड़ेगी बीट द जीमैट एंड जीमैट क्लब में, GRE prepclub.com और gmatclub.com. ओके, इनमें आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है. हम लोग आपको आंसर्स वहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे. ठीक है, वहाँ पे अगर आप लिखोगे, बिकॉज दे आर ऑल ऑफिशियल क्वेश्चन, तो नॉर्मली इनके ऊपर डिस्कशन हुई होती है. मुझे सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके आंसर्स देखते हैं. GMAT क्लब इज मोर इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि वो ज़्यादा पुराने GRE क्लब जब से 1 साल पहले स्टार्ट हुआ है, 1.5 साल पहले. तो GMAT क्लब में मुझे अपनी प्रोफाइल बनानी है. उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ अगर कोई आंसर्स ऑलरेडी किसी क्वेश्चन के आंसर वहाँ पे मेंशन है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जो कि ऑफिशियल जो कि एक्सपर्ट्स हैं उनके मैंने आंसर देखने हैं. क्योंकि इफ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, यू आर गिविंग मी द आंसर, आई डोंट नो वो आंसर एक्सप्लेनेशन ठीक है भी कि नहीं है. तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मैंने आंसर देखने होते हैं सिर्फ और सिर्फ, और वो शुरू में आ जाते हैं क्या आंसर ऊपर आए होते हैं. ठीक है, ये मुझे प्रोफाइल्स अपनी बतानी है बिकॉज डाउट क्लियरेंस मुझे करनी होगी, लेकिन मुझे सिस्टमैटिक वे भी करनी होगी. व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग डाउट क्लियरेंस नहीं करते. व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग या प्राइवेटली अगर मैसेज करेंगे वो हम लोग नहीं उस पर रिप्लाई करेंगे. ठीक है, तो वो आप लोगों ने उधर से हम लोगों को अप्रोच करना है. वहाँ पे अगर आप लोगों ने क्वेश्चन कर दिया, उसके बाद उसका लिंक आप लोग जो है ना शेयर करते हैं, क्या ये लिंक है इसका ना, प्लीज मुझे आंसर आप वहाँ पे देना. अगर हम लोग वहाँ पे जाके उसको फिर आपको आंसर वहाँ पे देंगे. अगर आंसर देते तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है. मैं ये बहुत ही सिस्टमैटिक वे, जैसे कि बहुत chaotic वे किसी और तरह की, वो इस तरह से आप लोग इसको रखना है. ठीक है, मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग अनऑफिशियल मटेरियल फिर भी ले आते हैं, लेकिन वर्बल का जो मटेरियल है वो हम लोग ऑफिशियल मटेरियल से ही स्टे करते हैं. ऑफिशियल मटेरियल जस्ट और जस्ट GRE का ऑफिशियल मटेरियल नहीं की बात नहीं हो रही. जो GMAT का भी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसी तरह ही ऑपरेट करती है जिस तरह GRE रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन
ऑपरेट करती है। जेआरई की थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन एक और है एलसेट का टेस्ट, उसकी भी रीडिंग कॉम्पिटिशन होती है, लेकिन सारे हम लोग ऑफिशियल क्वेश्चन होते हैं, ये वर्बल के। जो मैथ्स है हम लोग थर्ड पार्टी क्वेश्चन को फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, perfect. And see you guys tomorrow. Tomorrow we'll be cracking this passage. Tomorrow we'll be cracking this passage. If you want to go through this passage, go, but don't look at the explanations from internet. इसका अगर आपको नहीं करना कर ले, लेकिन जिस आप भी करने को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जस्ट आज अपने आप को ओरिएंटेशन का थोड़ा सा देखें कि यार ये क्या चीज़ है, किस तरह मैंने अपने गोल सेटिंग किस तरह करनी है, एक पूरा अपनी स्ट्रेटेजी को डिवाइस करें कि गोल सेटिंग को मैंने किस तरह पहुंचने, मैंने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, किस तरीके से मैं अपनी कौन सी चीज़ों को टाइम कट कर सकता हूँ। जो व्हेन यू विल बी वेकिंग अप, सुबह के जो 2 घंटे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं उसमें अपने आप को कर सकूँ जीआरई, वो बहुत इंपॉर्टेंट। क्वालिटेटिवली दिन का हर टाइम में एटमॉस्फेयर की एनर्जी जो होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। इन द आफ्टरनून जो एटमॉस्फेयर की एनर्जी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। इस काइंड ऑफ एनर्जी, जो सूदिंग एनर्जी जो मुझे इंड्यूस करती है कि मैं थोड़ी देर आराम। ओके, it's like you are speaking a 2x speed on YouTube. Okay, Aisha. Oh, I'm really sorry. ठीक है, okay. What I want to say कि यहाँ पे इनफैक्ट मैं बात क्या कर रहा था, क्या हो रही थी बात? यस 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 यस, जो सुबह की एनर्जी है, इनफैक्ट अगर आप लोगों को पता है ना इस चीज़ का कि सुबह के वक्त सोने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। मुझे नहीं पता कि हमारे जो पेरेंट्स कहते थे वो बिल्कुल ठीक है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब सुबह के टाइम, जो कि एग्जैक्टली अगर आप लोग देखते हैं इस लिहाज से, जो टेक्निकली ये बनता है जब सूरज निकलता है और थोड़ा सा सूरज ऊपर हो जाता है, जिसको टेक्निकली कहा जाता है कि उसमें नमाज पढ़ना भी प्रोहिबिट होती है, जो चार इशराक का टाइम होता है। ओके, उसके बाद अगर मैं सो जाऊं वो ठीक रहता है, लेकिन उस टाइम पे सोना जो होता है वो आपके दिमाग को कमजोर करता है। उस टाइम पे क्या कर सकते हो, उस टाइम पे सन गेजिंग थोड़ी सी बंदा कर सकता है। थोड़ी सी बंदा, अगर आप सुबह उठ के जॉगिंग करो तो आप इतना एनर्जेटिक फील करते हो। अगर आप 2-3 जॉगिंग करो, सन गेजिंग भी साथ कर रहे हो तो वो बहुत जबरदस्त हो जाता है। जैसा हमारा यहाँ पे पोलो ग्राउंड है तो वहाँ पे हम नॉर्मली कभी कभी इस तरह करते हैं कि जॉगिंग हो जाती है और सन गेजिंग भी हो जाती है। और ऑफ कोर्स जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टॉक्सिक थॉट्स को नहीं लेके आना होता, टॉक्सिक थॉट्स जो है, टॉक्सिक पीपल जो उनको लाइफ थोड़ा सा कट आउट करने हैं, ताकि मैं एक चीज़ों को कर सकूँ। आई होप कि ये चीज़ें आप थोड़ा सा देखें इन चीज़ों को, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर ले आए, कोई भी हम लोगों ने चीज़ नहीं लीव की, लेकिन ये आप चीज़ें बात करना तो इजी है, लेकिन अब आप लोगों ने इम्प्लीमेंट भी करनी है। नॉट थोड़ी सी लाइफ की चीज़ें एडजस्ट कर दी जाएँ और ये चीज़ें हो जाएंगी। और कॉन्स्टेंट हैबिट जो आपके साथ अभी हम लोग शेयर करेंगे, जो वोकैबुलरी का गेम प्लान होता है, वो भी प्लीज़ आप लोगों ने करना है। दैट्स इट गाइस, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।